So just bear with me for another 2 minutes till this gets live on Facebook. Okay, so Assalamu alaikum, everybody, and welcome to this session today that is based on the idea of discussing constitutional courts in Pakistan and their pros, cons, and perspectives. As I've said before, the idea of having this conversation was to ensure that we can have a legal debate on this issue that keeps coming up every now and then. मेरी जो लास्ट मेमोरी है वो यही है कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बन रहा था तो उसके अंदर भी इस आइडिया को फ्लोट किया गया था, और उसके बाद अभी रिसेंटली भी जब हम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खास तौर पे पेंडेंसी की बात करते हैं कि बहुत सारे केसेस वहाँ पेंडिंग है, और फिर भी हर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है वो वहाँ, और पॉलिटिकल केसेस भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में एंड करते हैं, तो बार की तरफ से भी फिर एक दोबारा से ये डिमांड जो है वो भी रिसेंटली आई है कि क्यों ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग से बना दिया जाए जहाँ पे ये सारे जो मामलात हैं वो हों, ताकि सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो दीगर अदालतें हैं वो अपने जो रेगुलर सिविल और क्रिमिनल मैटर्स हैं उनको एड्रेस कर सकें. So in that context, there's a lot of speculation also. There's a lot of debate around this. So we thought that we'll get some of our best lawyers on board and discuss this topic from a very legal perspective and a very constitutional perspective. So in that stride, we are going to straight away dive into the conversation. Our idea today is to develop an understanding and critically evaluating the need for a constitutional court in Pakistan. We look at the advantages and the challenges of creating such a specialized court to handle constitutional matters separate from the existing judiciary structure. And we'll also cover some comparative insights from other jurisdictions where such courts do exist. And we'll see what the implications for the delivery of justice and rule of law and perception of the courts is when that happens, or in situations where that happens. We'll also look at, implications of having such a court on fundamental rights, and how does it relate to people's rights and people's expectations from the justice sector. So all of these questions, with me there's an illustrious panel. I'm delighted and extremely honored to have with us Dr. Mariam Khan. She's a socio-legal scholar on South Asia and a research fellow at the Institute of Development and Economic Alternatives in Pakistan. She has an SJT from University of Wisconsin and an LLM from Yale. Mariam's focal interests relate to comparative constitutional law and history, judicialization and legal mobilization in authoritarian context, ethnic federalism and conflict, law and social movements, and women's struggle in Pakistan. Mariam has published widely on these themes in international law journals. Her current book project relates to her doctoral research on constitution making in Pakistan, and is a public history component on oral histories with constitution makers. We also have with us Hassan Niazi. He has been practicing law since 2013, specializing in constitutional and regulatory disputes. He has served as visiting faculty member at a number of law schools in Lahore, but most notably the Lahore University of Management Sciences, where he taught jurisprudence. He's currently based in Singapore, where he's the lead regulatory counsel for the South and Central Asia region for Meta Platforms, advising on issues related to freedom of expression and the regulation of social media. He earned his LLM from New York University as a Hauser Global Scholar. We also have with us we don't have with us right now, but we're hoping to have with us Sajjad Hamid Yousafzai. He's an advocate, High Court, and holds LLB from International Islamic University. He founded Aino Qanun, an initiative which aims to summarize important judgments of the higher judiciary in Urdu language for the understanding of common man. We're also looking forward to have with us Jalila Haider. She is, and I'm very proud of that, she is the chapter lead
for Women in Law Balochistan chapter. She's a celebrated and award-winning human rights activist and a lawyer, practicing lawyer, and who does a lot of work for victims of terrorism as well, particularly the female and the women who are left behind. She's given them a source of livelihood and earnings. So we're very happy and we hope that she's able to join us at the session. She's having some internet issues, but we're hoping that she will be able to log in soon. We have with us from Karachi, we have Sara Malkani. She's a lawyer based in Karachi, Pakistan. She practices civil and criminal litigation primarily in the Sindh High Court and District Court in Karachi. Her practice includes a variety of human rights cases and public interest litigation. It's an honor for us to have her. And finally, we have our senior most panelist, Advocate Supreme Court, Mr. Syed Ahmed Hassan Shah Sahab. He's a founder partner of Islamabad-based law firm Hassan Kunain Nafees. He did his LLM on a Chevening scholarship from King's College London. He does litigation as well as transaction advisory services for local as well as foreign clients. He's among a select group of Pakistani lawyers who have international exposure in arbitration matters, including investor-state arbitrations. He has an illustrious profile. I can't possibly read all of the amazing things that he's done, but I will say that he has been a member of the Joint Task Force on Regulatory Reform and Governance related issues in non-profit sector organizations set up by SECP and the Institute of Chartered Accountants of Pakistan. He's also a member of the Review Board for Public-Private Partnership Standardization Documents for User Pay Model, set up by the Infrastructure Project Development Facility, as well as an independent director on the board of the Islamabad Stock Exchange. He also has an interest in poetry and has his own initiative by the name of Transpoetica, a literary initiative committed to promoting Urdu and Punjabi poetry to the English-speaking audience. With that, I welcome this illustrious panel to the conversation today. Starting from Hassan Niazi, I'd like Hassan to give us a conceptual understanding of what a constitutional court really is and how does it differ from the Supreme Court. Very briefly, we'll just address this question, and then I'll take Ahmed Hassan Shah Sahab on the same questions. Over to you, Hassan. Thank you, Nida. It is a pleasure to be here, and I'm very grateful that you invited me along with people who as you rightly said, a very illustrious panel. So I'm very grateful and humbled. I think generally जो आपने बात की है, what is a constitutional court? अभी तक जो आपने proposals की बात की, आपने कहा कि कुछ proposals आते रहे हैं, chartered democracy में भी आते रहे हैं, मगर to be honest, I don't think कोई बहुत clear बात हुई है कि जब ये constitutional court की बात करते हैं, तो ये क्या reference कर रहे हैं. मगर हम एक general understanding ले सकते हैं. जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की मुझे लगता है जो सबसे अहम डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है वो ये है कि उसके पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए. अभी अगर आप देखें इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और जहां से ये कॉन्सेप्ट मेरे मुताबिक काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया वो यूरोप से था. यूरोप में मोस्टली सिविल लॉ ज्यूरिसडिक्शंस में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है. सो अगर आप ज्यूरिसडिक्शंस देखें, जर्मनी देख लें, इटली देख लें, फ्रांस देख लें, वहाँ एक डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है. तो इन सिस्टम्स में यूजुअली ये होता है कि सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स अलग होते हैं, कभी कभी एक इवन एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट अलग होता है और एक सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है. और कोई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को या डिस्प्यूट्स को नहीं सुनता. जो हमारा मॉडल है वो उससे किस तरह फ़र्क है. जो कॉमन लॉ सिस्टम्स हैं उनमें अगर आप जिस तरह अमेरिका देख लें या और जुरिस्डिक्शंस देख लें जहां सुप्रीम कोर्ट्स जो होते हैं या जो उनके हाई कोर्ट्स कह लें वो सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल हर किस्म के केस सुनते हैं. एंड ये पावर ना सिर्फ टॉप कोर्ट के पास होती है, बाकी भी काफ़ी कोर्ट्स के पास होती हैं. सो इट्स ऑल्सो नोन एज द डिफ्यूज्ड मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू. Whereas जो यूरोप वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसे सेंट्रलाइज्ड मॉडल कहते हैं क्योंकि एक सेंट्रल जगह में डिस्प्यूट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो रिजॉल्व हो रहे होते हैं. एंड आई थिंक जो ज्यूरिस्ट है हैंस कार्लसन, उनका बहुत इसमें काम उनका था सेंट्रलाइज्ड मॉडल में.
तो मेरे मुताबिक अगर जनरली बात करें इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास, अगर आप ओवरव्यू लें मुल्कों का, और ये सिर्फ यूरोप में नहीं है, अब डेफिनेटली काफ़ी और एशियन जुरिस्डिक्शंस में भी हैं। आई बिलीव थाईलैंड में है, कोरिया में है, ताइवान इज़ अनदर एग्जांपल। मगर मोस्टली आप देख रही हैं कि सिविल लॉ इन्फ्लुएंस जुरिस्डिक्शंस हैं। South Africa is, I think, the only example. Perhaps Dr. Mariam Khan might know others, but where there was a common law influence, but they still have a constitutional court. Jurisdiction wise, सबसे अहम jurisdiction होती है कि statutes का judicial review for constitutionality. Executive का भी होता है judicial review. Elections and political parties के ऊपर, और कुछ jurisdictions में ये भी होता है कि वो even constitutional process को examine कर सकते हैं. So weighing in on whether or not a constitutional amendment is even lawful. Now, sub में ये सारे powers नहीं होते, मगर if you look at it broadly, these are the powers they have. I'll stop there, a very high overview, but I will say one thing I think हमें याद रखना चाहिए कि हम जब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, हमें याद रखना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट किस तरह ऑपरेट करेगा इन अ हाइब्रिड और ऑलमोस्ट लीनिंग अथॉरिटेरियन रिजीम, और उन रिजीम्स में इसका क्या रोल होता है, इस पे बात करना भी बहुत अहम है. सो आई विल स्टॉप देयर. बिल्कुल, आई थिंक हसन आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है, विच इज अबाउट आवर कॉन्टेक्स्ट एंड contextualizing something that may have worked in other countries in their context to see how it applies to ours. And with this conceptual understanding, I'd like to take the same question to Advocate Supreme Court Ahmed Hasan Shah Saab, कि वो इसको थोड़ा सा कंटेक्चुलाइज भी करें और हमारी प्रैक्टिकल जो अंडरपिनिंग्स हैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको थोड़ा सा बताएं हमें कि हाउ विल दिस कोर्ट, इफ इट गेट्स मेड, बी डिफरेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. अहमद साहब, ओवर टू यू. बहुत बहुत शुक्रिया निदा. आई फील वेरी यंग विद ऑल ऑफ यू यंग पीपल. आई एम द ओनली ओल्ड हैग इन द टीम. सो बहुत शुक्रिया आपका. मैं हसन की बात में थोड़ी सी मैं रिपीट कोशिश करूंगा और ना करूं, और थोड़ी सी वजाहत कर दूं कुछ नुकात पर. पहली बात तो मैं इधर से ऑन अ लाइटर नोट ये शुरू करना चाहता हूं कि एज अ पाकिस्तानी हमें ये एहसास होता है कई दफ़ा कि हम कई एक्शंस को, कई टर्म्स को हम अपने ही मानी दे देते हैं. वी लाइक टू डिफाइन थिंग्स इन आवर ओन पर्टिकुलर वे, और हम उनकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी या मीनिंग जो होता है ना उसको भूल जाते हैं. फॉर अ वेरी सिंपल एग्जांपल, के गाड़ी का इंडिकेटर है, उसका मतलब ये होता है कि राइट या लेफ्ट मुड़ना है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिकेटर दे के इशारा देते हैं कि भाई तू भी आगे चला जा. सो इतनी मंडेन चीज से लेकर मोर सीरियस थिंग्स को भी हम कॉन्फ्लेट कर देते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसके साथ भी यही सलूक हो रहा है. आपने अक्सर ये सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि जी हाँ, आइन है ना पाकिस्तान का, आइन के पाकिस्तान के तहत जो अदालत बनी है वही तो कॉन्स्टिट्यूशनल है कोर्ट, और क्या चाहिए आपको. तो ये बिल्कुल हसन ने सही बात की कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो एक डिस्टिंक्ट जानरे है अदालत का, और इसकी ओरिजिन्स यूरोपियन एक्सपीरियंस से हैं. जो मैं वजाहत करना चाहता हूँ वो क्यों है, वो ये है कि ये तकरीबन 1920 ऑनवर्ड्स की बात है डेवलपमेंट. इसकी फाउंडेशन जो है, जेनेसिस जो है, वो अथॉरिटेरियन या टोटलियन रिजीम्स जो थी ना, टोटलिटेरियन रिजीम्स, ये उनके रिएक्शन में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था. और आई यूज्ड टू वंडर कि ये या मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स के रिएक्शन में ये चीजें बातें होती हैं, क्योंकि मकसद ये है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डेमोक्रेसी को पुख्ता करना है. तो ये एक ऑल्टरनेट सोच थी कि जो कॉमन लॉ सिस्टम्स है वहां पे तो हर अदालत, हम में से जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको ये भी मालूम है कि सीपीसी में भी एक शिक है जो सिविल कोर्ट में कहती है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है तो आप दरखास्त दे के तो अटॉर्नी जनरल को नोटिस दे कि वो आके अदालत की मुआवरत करे. तो हमारे यहाँ तो सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आईनी मामलात जो है उनकी अदालत जो है उसके ऊपर अपनी कोई ना कोई राय दे सकती है. लेकिन ये जो थीम है वो ये कहती है कि हमें आइसोलेट कर देना है, कॉन्सेंट्रेट कर देना है आउटसाइड ऑफ द जनरल सिस्टम ऑफ जुडिशियल जो स्ट्रक्चर है इन द कंट्री. तो एक तरह से ये पैरेलल सिस्टम खड़ा हो जाता है. इसको ये भी कहा जाता है कि भाई ये तो फोर्थ पिलर बन गया स्टेट का एक तरह से,
है ये विदिन द जुडिशरी ही सो टू से, लेकिन ये एक फोर्थ सोर्स बन जाती है। मकसद इसका यही है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, डेमोक्रेसी को पुख्ता करना है। दूसरी अहम बात यह है कि हमारे यहाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिस वक्त आया तो उसकी बैकड्रॉप क्या थी? उसकी बैकड्रॉप एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप का एक्सपीरियंस था। तो ये बड़े ताज्जुब की बात है, और ये अगर ऐसा हो जाता है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान गालिबन ये पहला कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन होगा। बिल्कुल साउथ अफ्रीका का जिक्र दिया, लेकिन वो हाइब्रिड है वहां पर निज़ाम। हम हेवीली कॉमन लॉ इंस्पायर्ड हैं, और हमने लेटर इन द ईयर्स अपने आप को इस्लामिक लॉ से ट्वीक किया है। सो हमारा भी हाइब्रिड निज़ाम जो है वो कॉमन लॉ और इस्लामिक लॉ का इंस्पायर्ड है। तो अब हम एक तीसरी चीज लेकर आ रहे हैं, अगर ये हम कभी ले आए पाकिस्तान में, कि अब हम एक सिविल लॉ अमेलगम भी अपने साथ इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो अब होगा क्या? ऐसे मामलात में दुनिया भर में, यूरोपियन एक्सपीरियंस में भी कॉन्फ्लिक्ट तो अदालत के अंदर होता ही लाजिम है, क्योंकि जंग छिड़ जाती है जजेस के दरमियान। इसको वॉर ऑफ द कोर्ट्स या वॉर ऑफ द जजेस भी कहा जाता है, कि भाई कौन सा मामला किसकी जुरिस्डिक्शन में है। तो इसलिए सबसे अहम चीज जो हो जाती है वो ये हो जाती है, कार्व आउट करना कि इसका स्कोप क्या है। और इस ज़मन में ये मैं वजाहत करता चलूं कि ये सवाल कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है एक्शन, क्या नहीं है, इसके अलावा इंटरप्रिटेशन का जो मामला है वो भी बहुत साथ साथ आम चलता है। तो इसलिए जिस तरह हसन ने वजाहत की, एक तो यह है, ये जहन में रखें, this is the European understanding of how the separation of powers takes place within the modern state. जो ट्राइकोटमी का कॉन्सेप्ट है, जो हम भी मानते हैं, यूरोपियन टेक उसमें यह है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को सप्लीमेंट करना है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। तो ये कहना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल, फॉर एग्जांपल हम बहस ये भी सुनते हैं कि ये बड़ा कोई मायूब कॉन्सेप्ट है। ऐसा ये मायूब कॉन्सेप्ट नहीं है, दुनिया में 80-90 ममालिक में ये मौजूद है। हाँ, वो सिविल लॉ सिस्टम्स में अक्सर है और बहुत कम, बट हर सिविल लॉ सिस्टम में भी नहीं है। जापान एंड अदर प्लेसेस डोंट हैव अ कोर्ट लाइक दैट। सो ये देखना ये है। और ये जो हांस केल्सन जिसकी बात हो रही है, इसने खुद अपनी तहरीर में कहा, उसने कहा ये मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है, या हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है कि हम एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोड डेवलप कर दें जो हर को यकसा लागू हो जाए। हर मुल्क की पॉलिटिकल रियलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स फर्क तरीके से डेवलप करता है। तो अगर ये इसको अडॉप्ट करना है तो इसको हमें अपने में करना होगा। मैं पाकिस्तान के हवाले से वेरी क्विकली करके खत्म करूंगा, फिर आगे बात करेंगे। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने ये एक्सपीरियंस एक और नाम से पहले कर दिखाया है। मेरी नजर में अगर आप इसको पैरेलल ड्रॉ करें, तो जिस तरह हसन ने कहा ये बिल्कुल सही है। इसका मकसद है कि आपने आईनी मामलात को एक एक्सक्लूसिव अदालत की जिम्मेदारी में सौंप देना है। तो हम ये पहले एक्सपीरियंस फेडरल शरीयत कोर्ट की शक्ल में एक दफा कर चुके हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट क्या चीज थी? वो इस्लामिक मामलात में आउटसाइड द कन्वेंशनल सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ जस्टिस, एक हमने पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। मगर उसमें एक फर्क था, उसकी अपील जो है वो प्रोवाइडेड है टू अ शरीयत अपीलेट बेंच इन द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन रवायती कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो वन स्टॉप शॉप होती है। जो काम आपने करना है, एक देयर इज नो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एंड देयर इज नो अपीलेट कोर्ट। ये सारे का सारा काम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने करना है। तो इसलिए एज ए कॉन्सेप्ट, अब अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको अवाम मानती है कि वो अवाम की आवाज है, उसमें ये इशू रिजॉल्व हो गया है, तो इतनी कोई मायूब बात नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली देखना यह है कि क्या ये पाकिस्तान की मौजूदा जो हालात हैं, या हमारी जो वैसे सिस्टम अभी खड़ा हुआ है और जो जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम इंडिया से हमने थोड़ा सा वो जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का मॉडल है कि जी कुछ चीजें आइन की तब्दील कभी नहीं हो सकती, जो हमारे फ्रेमर्स ने आइन बना दिया, अब वी आर स्टक विद इट फॉर जनरेशंस। तो हमने उसको सेलिएंट फीचर्स की नाम में थोड़ा सा अडॉप्ट किया है, जिसका एक बहुत अहम कंपोनेंट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो सब आगे जाके ये कोर्ट बनेगा, इसकी जो भी हैयत होगी, जैसा भी होगा, उसको ये टेस्ट या चैलेंज भी अबूर करना होगा। सो अभी हम आगे चल के और बात करेंगे।
तो अभी बात सिर्फ मैं यही इत्तेफाक करना चाहता हूं कि ये गलत तासुर ना लिया जाए कि ये कोई मायूब चीज है, ये गलत तासुर ना लिया जाए कि इसका मकसद कुछ ऐसा है कि जो और कभी दुनिया में हुआ ही नहीं, ये होता है। ये हर कौम अपने हिसाब के मुताबिक इसको अडेप्ट करेगी। और आखिरी चीज, वो अलेक्जेंडर पोप का एक पॉलिटिकल हवाले से एक कपलेट है कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कंटेस्ट, व्हाट इज बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड इज बेस्ट। तो ये भी अदालत भी, निजाम अदल जो है उसके ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, जस्टिस को एडमिनिस्टर किया जाता है। सो एकेडमिकली स्पीकिंग कोई भी अदालत अगर वो अदल एडमिनिस्टर सही कर रही है तो वो सक्सेसफुल करार पाएगी, और अगर वो नहीं कर रही तो जो तजब्जुब, जो इस्तराब, जो परेशानी हम अपनी अदालतों के हवाले से जिक्र करते हैं वो इसमें भी बरकरार होगी, ये बदल नहीं पाएगा। हसन साहब थैंक यू, आपने बहुत अच्छी एक इंटरेस्टिंग बात की वन स्टॉप के हवाले से। मैं लेटर ऑन समझना चाहूंगी कि इसमें क्या हम बेंचेस बना के कुछ अपील का कि एक लार्जर बेंच बन जाए, क्योंकि अपील इसमें आपने कहा शायद मुमकिन नहीं, तो वो उसके ऊपर आगे जाके डिस्कशन करेंगे। मैं इस वक्त मुझे एक से मिनट दे दें, मैं अभी इसको कर देता हूँ, फिर आप उठ के होगा। हमारे यहाँ जो तसव्वुर ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आया ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग तसव्वुर है। वो तो बात तय हो गई कि वो एक मिलिट्री बैकड्रॉप में आया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा जिसके अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट्स। यानी कि हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स अब कैपिटल टेरिटरी को निकाल के 4 हैं जी, तो हर एक की बराबरी की नुमाइंदगी होगी इसके अंदर। बट ये भी तो ये कहा 2 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट होगा, तो ये क्या टाइम बाउंड भी हो सकता है इस तरह का कोर्ट? जी, इसकी उन्होंने कहा 6 साल की इसकी मयाद होगी, जो जज लगाए जाएंगे वो 6 साल की टर्म होगी, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है। सो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा? यही लोग जो बाकी जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो और उनकी असल चैलेंज ये है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसकी ज्यूरिसडिक्शन का कार्व आउट कैसे बनाना है, दैट इज द रियल टेस्ट। बट ये भी इंटरेस्टिंग है ना, जब वो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो तब वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो 18वीं तरमीम से शायद गालिबन पहले का है, उस वक्त तो प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग जजेस थोड़ा मुख्तलिफ था। तो क्या आज भी हम ये कह सकते हैं कि दैट चार्टर understanding of appointing judges would probably be the same as how it's being done today, and even the amendments that we are speculating are going to happen as far as appointments of judiciary are concerned as we speak, abhi assembly session mein hai, तो क्या हम उसको उतना broadly ही interpret करेंगे या उसमें भी फिर कोई आगे जाके issues आ सकते हैं? मेरे ख्याल में तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से ही ये निकला है, जुडिशल कमीशन, उसी में ये तरतीब लिखी हुई थी कि कौन कौन होगा इसका। सही सही, तो ये कॉन्टेम्पलेशन बताओ। बिल्कुल, एक मिनट मैम, सॉरी फॉर इंटरप्रिटेशन। सर हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केसवनंद भारती केस में था। तो हमारे यहाँ क्या है, जुडिशरी काफी सेपरेट है, मेंटेन इंडिपेंडेंस एंड जुडिशरी बहुत पावरफुल है, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है। तो हाँ, अब तो उन्होंने सिटीजन की लिबर्टीज को मेंटेन कर रखा है अच्छे से। तो आपके यहाँ पे एक जुडिशियल रिव्यू टाइप का कोई सिस्टम क्यों नहीं है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंस की तरह मेंटेन कर सके, और ये डेमोक्रेटिक चार्टर से क्यों अलग है जैसे? तो थोड़ा सा मुझे इस बारे में। एक मिनट में थोड़ा सा इंटरजेक्ट कर लूं। शांतनु इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद साहब, सो जस्ट सो यू नो, लेकिन इनका क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं, we'll take it up in the Q&A session. I would just want to run through the questions जो हमारे हैं, and then when we open the floor तो हम इसको रेस्ट करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। We'll come back to this judicial review question if that's okay. ठीक है, thank you so much. Meanwhile मेरी रिक्वेस्ट है कि बाकी सब आप ना प्लीज काइंडली म्यूट कर लीजिए, बाकी सब भी काइंडली म्यूट कर लीजिए so that we can continue with the conversation. और जब आपको बोलना हो कुछ, आप जरूर हाथ खड़ा कर सकते हैं, you can raise your hand and I will give the floor to you. Moving on to our second question on this topic, that's from Dr. Mariam S. Khan. If anybody else from the speakers has anything to add to this question, तो आप बता दें, otherwise I just want to understand from Dr. Mariam
कि जिन jurisdictions में ये exist करता है वो what are those kind of jurisdictions, वो बात हो चुकी है कि वो civil jurisdictions है mostly, लेकिन ऐसा क्या context और element उनमें exist करता है कि इस तरह का court वहाँ पे successful होता है, and can we say that a similar context or those elements exist in Pakistan for such a court to be established? Over to you, Dr. Mariam. Thank you so much, Nida. And first of all, बहुत शुक्रिया आपका for organizing this. I think it was a much needed conversation. तो पहली बात तो ये है कि I think the question has been substantially answered by both Hassan and Ahmed Shah Saab. So the couple of things that I want to add. First of all, I want to say that just talking about Hans Kelsen, 1920 May was the year where this was proposed and established, right? This was known as the Kelsenian model. The prototypical model was basically established in Austria. So the idea is now a century old. So in many ways, this is a very timely panel and a very timely discussion. And as you know, Hans Kelsen will never leave Pakistan, because we've had a history of really wanting to, go back to Kelsen at so many levels. And I think this discussion also is part and parcel of that broader phenomenon where constantly problems ki jo solutions hain, we are looking at other jurisdictions for those without, I think, properly grounding our comparisons in historical context and all of that. So I think it's really the question of historical context, of current political conditions, also agendas and motivations are really important. ठीक है ना? So I think the only thing I want to add in terms of किस तरह के systems जो हैं वो constitutional court को अपनाते हैं और उसके through constitutional review exercise करते हैं. I think somebody mentioned South Africa. I think there was a conversation going on, and Ahmed Saab is right in saying that South Africa is very much a hybrid system. And actually, I would also categorize India and Pakistan as hybrid systems in that respect, because we are not a diffuse system like, let's say, the US, जहाँ पे आपके सारे courts के पास इख्तियार होता है कि वो आइन को सामने रखते हुए बात करें या आइन को अपने reasoning में weave in करें, right? So to that extent, I mean, we also have a tradition, a hybrid tradition, which actually raises the question of why we want a separate or functional separation at this stage, right? So there are lots of question marks around the motivations for why this has come up. The only, I think, in my own knowledge, the one constitutional court, which is a centralized system in an authoritarian context, would be Egypt, or wo bhi ek civil law system ka context hai, right? So, and once again, one can question how effective that court has been against, military authoritarianism, jahan pe aapka military का political control or interference आ जाता है और बहुत strong एक history होती है. So it's questionable whether a constitutional court is actually going to be able to really deliver on your benchmarks of success, and I'll come down to those. So एक तो ये broad बातें हैं of where the constitutional court comes from, and one other thing I just want to add there for everybody's context is कि ये जो original इसका model था जो कि आज I think France में भी है to quite an extent, was abstract review. Right, so the idea was कि आप constitutional review को completely separate कर दें from the implementation and enforcement of the law, right? So the idea is that before a piece of legislation actually becomes law, it first goes to the court. So the court is an extended part of the legislative process, and the court at that point decides on the constitutionality of that proposed legislation. Once it is passed, then आप उस law की constitutionality को presume कर लेते हैं, and then the only contestation is over implementation and enforcement. ठीक है ना? और ये बड़ा एक समझे डेमोक्रेटिक मॉडल इस तरह से है कि concrete review में you're basically challenging
the legislative branch, the government, and saying that you're violating the constitution. So in that sense, an abstract review system keeps that kind of political integrity of your elected government intact in many ways, right? But it's a very rare sort of occurrence in the contemporary world कि इस तरह से सिर्फ abstract review हो. अब उसके अंदर concrete review भी है, mostly review of constitutional amendments भी है, जिस तरह I think Hassan ने mention किया, and also constitutional complaints. So the idea where, you know, either the matter is being referred by another court, which is a non-constitutional court, or the matter is being maybe litigated by litigants, which has always been, you know, which has been the trajectory since at least the 1990s under 184.3, right? So it's very hard to undo जो आपने norms बना लिए हैं. जब आप directly वो constitutional complaints और litigation आएगी उस court में, तो किस हद तक आप backlog को resolve करेंगे और किस हद तक आप so on and so forth. So I mean, there are a lot of complex questions there. लेकिन जहाँ तक पाकिस्तानी context का सवाल है, I also want to talk a little bit very quickly about constitutional design, क्योंकि ये एक design का सवाल है ना कि आप institution को इस तरह से design या redesign करें कि you get different results. So you want different outcomes. We are not clear on what those outcomes are. Actually, those are up for debate. We only know what the preferred design elements are, right? लेकिन उसके अंदर एक चीज बहुत जरूरी है, वो ये है कि we don't know how design impacts outcomes. There is no linear, you know, impact of design reform anywhere in the world, whether you're redesigning a judicial hierarchy or you're redesigning something else, or you're redesigning your federal system, there will always be unintended consequences. Objectives may be very, very diverse. Different institutional actors may be looking to use this design in different ways, right? And assumptions may be extremely flawed कि इसका outcome ये होगा और political condition से उस calculus का कोई ताल्लुक ही ना हो, right? Because we also have a tendency to think of things in a very technocratic way. Even though I don't think this is a technocratic question, design has become a very specialized technocratic field of best practices and all of that. But asal to aapka sawal siyasat ka hai, right? It's a political question, fundamentally. So ye cheez samne rakhne wali hai, and as an academic, you see, you will never get a clear answer from me on this one. But what I can do is to delineate some issues that we should be thinking about. Ek to aap yaad rakhein ki Mark Galanta, who was, you know, one of the pioneers of the field of law and society, worked a lot on India and to some extent on Pakistan. And his observation about Pakistan and to some extent India was कि ये ट्राइब्यूनलाइजेशन यहाँ बहुत ज्यादा होती है. जब आप जुडिशरी की रिफॉर्म की बात करते हैं ना, तो वो रिफॉर्म का ये मतलब नहीं होता कि आप जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें रिफॉर्म लाएं कोई स्ट्रक्चरल. उसका मतलब ये होता है कि आप एक और फोरम क्रिएट करते हैं, आप एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बना दें, आप प्लाने स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स बना दें, आप जेंडर कोर्ट्स बना दें, अब आप चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन का कोर्ट बना दें, आप मतलब आप इतनी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ले आए within a system that really is not able to maintain that functional separation because of the power relations within that institutional hierarchy, right? So ये tribunalization का ही एक बहुत अच्छा example है, because आप forum duplicate करेंगे और आप शायद उसी पुरानी प्रॉब्लम को रेप्लिकेट भी कर लेंगे. It's been a hallmark of our judicial system. आप कोई भी ट्राइब्यूनल स्पेशलाइज I think that, and then it becomes very difficult to undo. Yeah, sorry for interrupting, but I think that really helps us get into the next question, where we talk about these jurisdictional conflicts also. जैसे पहले भी बात हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन रखेगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो जैसे हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स भी हैं, और फिर फंडामेंटल राइट्स तो हमारे हर दूसरे केस में भी उठाए जाते हैं. सो उस हवाले से अगर मैं सजाद हमीद यूसुफ सई की तरफ जाऊं अब, तो मैं, और उसके बाद हसन साहब आपकी तरफ भी वापस आऊंगी. हाउ वुड अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट
interact with the existing Supreme Court of Pakistan? And could this lead to jurisdiction conflicts or issues of judicial hierarchy? आपके ख्याल में सजाद क्या ऐसा होगा और इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं फिर? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मैम फॉर द इनविटेशन। अच्छा, ये सबसे जो अहम सवाल है मेरे ख्याल में वो इस हवाले से यही होगा, जुरिसडिक्शन पे पहले भी दोनों स्पीकर्स बड़ा अच्छा बोले, अहमद साहब भी बोले। मेरे जहन में जो सबसे पहला सवाल आता है जुरिसडिक्शन के हवाले से वो ये आता है कि सपोज इफ़ अ मैटर इज़ पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, तो उसके अंदर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है and the Supreme Court is not willing to send the matter to the Constitutional Court for interpretation, तो फिर क्या होगा? ये मामला क्या कोई petitioner, if I am standing before the Supreme Court as a petitioner in a case and there is a question of constitutionality या constitutional interpretation, तो फिर क्या मैं आज खुद वो मैटर्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ला सकता हूँ या नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट भी वो ना माने? इसी तरह हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई मैटर है और हाई कोर्ट वो मैटर जो है ना उस कोर्ट को नहीं भेज रही, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? तो वहाँ पे एक बड़ी जो है ना एक जंग की सूरत हाल होगी कोर्ट्स के दरमियान कि एक कोर्ट वो अज्यूम कर गई है जुरिसडिक्शन एक मैटर में, उस पर वो जजमेंट दे रही है, उसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है और वो नहीं भेज रही। सपोज पिटिशनर वहाँ पे जो पार्टीज है वो एलेज कर रहे हैं कि इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, इसको भेजा जाए, लेकिन अगर कोर्ट कहे कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन नहीं है, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? क्या हम डायरेक्टली उसको सीसी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसको अप्रोच किया जा सकता है? क्या वो पहले ये डिटरमिन करेगी वो कोर्ट कि आया कोई इंटरप्रिटेशन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की है या नहीं है, और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि उससे पूछेंगे? मतलब बड़ा ही मुश्किल होगा इसको इस कोर्ट को डील करना, खासकर हमारा जो सिस्टम है पोलिटिसाइज भी है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाइल हैं। तो उनमें सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पैरेलल आप जो है ना अगर सीसी बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो ये बहुत ही एक मुश्किल काम होगा। ऑलरेडी अहमद साहब ने भी उस पर बात की है कि हम वफाकी शरिया अदालत बना चुके हैं। अब वफाकी शरिया अदालत की जो इंटरप्रिटेशन है, वंस इट अटेन्स फाइनलिटी देन दैट इज आल्सो बाइंडिंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट पे भी बाइंडिंग हो जाती है। अब रिसेंटली पीछे जो लास्ट में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, मेरे ख्याल में शायद हाकिम खान केस था या कोई और था, मैं अभी रिमेंबर नहीं कर रहा उसको। वहाँ पे ये सवाल था कि एक दफ़ा अगर ये वफाकी शरिया अदालत किसी केस को देख ले और वो फाइनलिटी भी अटेन कर ले कि जी फलां चीज़ रिपग्नेंट टू इस्लाम है, लेकिन सपोज दैट इज़ नॉट रिपग्नेंट टू फंडामेंटल राइट्स, बल्कि वो फंडामेंटल राइट भी बनता हो अगर उसको हम वेस्टर्न कंसेप्ट में ले लें, तो क्या फंडामेंटल राइट के टच स्टोन पे कोई बंदा उसी मैटर को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट खुद किसी केस में अगर उस तरह का कोई सवाल आ जाए तो उस पर वो कोई जो है ना कोई फैसला दे सकती या नहीं? तो इस हद तक भी कुछ जजेस ने कहा था कि बिल्कुल हम उस पे भी उसको भी फंडामेंटल राइट्स के टच स्टोन पे उसको हम देख सकते हैं। तो वो मैटर यहाँ पे भी है, तो एंड तो हो ही नहीं रहा। दूसरा मसला सबसे बड़ा ये होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ एक पैरेलल कोर्ट खड़ी कर देंगे जो कि सेंट्रलाइज कोर्ट होगा, और उससे भी बड़ा मसला हमारे लिए ये होगा कि हमने 18th अमेंडमेंट बना ली है, 18वीं तरमीम के अंदर सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज हो रही है, हम जा रहे हैं सूबाई खुद मुख्तारी की तरफ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक सेंट्रलाइज कोर्ट होगा जो पूरे मुल्क के लिए उसने इंटरप्रिटेशन के मसाइल तय करने हैं। अब पिशावर हाई कोर्ट वहाँ का कोई आदमी अगर वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर लेके आता है, तो जाहिर सी बात है उन जजेस की अपनी एक परसेप्शन होगी अपने सूबे के सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए, तो वो एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भी देखते हैं वहाँ पे कि उनके प्रोविंस को क्या चाहिए, वो कैसे उन्हें रन करनी है उन चीज़ों को। तो सेंट्रलाइज कोर्ट फिर कैसे ये इस चीज़ को टैकल करेगा? अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को हम एक तरफ सपोर्ट भी कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज और फेडरेशन के तर्ज पे एक सिस्टम भी हम लेके आ चुके हैं, 18th अमेंडमेंट भी हम लेके आ चुके हैं, तो उस सूरत में क्या होगा? और सबसे एक और बड़ा मसला ये कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, तो जो आप में से जितने भी सारे लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट अगर आते जाते हैं मुसलसल, तो वहाँ पे तो एक मसला ये बना है कि जो भी वहाँ पे केस आता है तो हर केस में ये कहा जाता है, कुछ जजेस कहते हैं जी इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है,
तो इसको रेफर कर दिया जाए टू द 5 मेंबर बेंच, या कमेटी को रेफर करे ताकि वो 5 मेंबर बेंच बनाए एक्ट के तहत और वो इसको देखे। तो हर दूसरा केस वहां पे जा रहा है। और जितने भी रिट पिटिशन होती है, जितनी भी रिट पिटिशन है, हर दूसरे तीसरे रिट पिटिशन के अंदर कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन जरूर होती है। तो फिर मसला ये होगा कि पैरेलल ऐसे सिस्टम चलेंगे कि एक पिटिशनर को हाई कोर्ट के सामने भी होना है और शायद उस पिटिशनर को एट अ टाइम एक और कोर्ट के सामने भी होना है। ये एक ऐसे सिस्टम के अंदर होगा कि जिसके सिस्टम के अंदर जो जुडिशियल बैकलॉग है केसेस का वो 2 मिलियन से अबव हो चुका है। तो क्या उस सूरत में हम इस चीज को हमें देखना पड़ेगा कि जब जुरिस्डिक्शनल इतने सारे इश्यूज आएंगे तो हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि ये जो बैकलॉग है, ये केसेस का जो बर्डन है, ये कम होगा या ज्यादा हो जाएगा। हमारा मसला ये है कि हम बाहर से जो भी चीज इंपोर्ट करके लाते, चाहे वो हम कोई आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ही क्यों ना लेके आ रहे हो, हम एज इट इज उसको कॉपी करके लेके आते हैं। वी नेवर थिंक कि हम उस चीज को टेलर करें टू आवर नीड्स, टू आवर रिक्वायरमेंट्स, और उसको कस्टमाइज करें हम अपने हालात में, और उसको कंटेक्चुअलाइज भी करें अपने हालात में कि हमें क्या चीज जरूरत है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो है ना, अगर वर्केबल है इन द यूरोप, तो यूरोप तो हमसे बहुत ज्यादा डेवलप है, उसके तो इतने मसाइल नहीं है जितने हमारे मसाइल है। दूसरा सवाल फिर इसके साथ ये आता है कि जरूरत क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की, आखिर वो क्या जरूरत पड़ी है। यानी अगर किसी कुछ कंट्रीज में 10, 15, 20, 30 कंट्रीज में अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है, तो दैट डजंट मीन कि हम उसको ले आएं और खुद यहाँ पे इंपोर्ट करें और फिर उसको एस्टेब्लिश करें। अगर उसकी जरूरत है तो पहले तो ये बताया जाए कि उसकी क्या जरूरत है। अगर ये जरूरत है कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट से ये बर्डन हटाना है ताकि सुप्रीम कोर्ट और केसेस डिसाइड करे, हाई कोर्ट्स और केसेस डिसाइड करे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए हम एक्सपर्ट जजेस बिठाकर वहां पे वो कर लेंगे, तो ये तो आप एक बेंच से भी काम ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए हाई कोर्ट में, या आप सुप्रीम कोर्ट में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना हो, हाई कोर्ट में भी हो, जैसे कंपनीज बेंच बनते हैं हाई कोर्ट लेवल पे, तो वो भी ये काम कर सकते हैं, उनसे भी ये काम ले सकते हैं। और द अदर डे आई हैड अ वेरी ग्रेट डिस्कशन विद अहमद साहब, और उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना चुके हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बना चुके हैं कि एनी मैटर जो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का सवाल हो, दैट शुड बी रेफर टू, या दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द बेंच ऑफ जजेस नॉट लेस देन 5 जजेस। तो वो तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो फिर इस चीज की क्या जरूरत है। अब वहां पे भी उस एक्ट के तहत भी हमें जुरिस्डिक्शनल इश्यूज सामने आ रहे हैं, यहाँ पे भी हमें सामने आएंगे। तो अच्छा, अगर ये मसला हो, एक और जो इशू आएगा, हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी या सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी, और वो जजमेंट ऐसी हो, जाहिर सी बात है वो भी सुप्रीम कोर्ट है, वहां भी बड़े जजेस बैठेंगे, तो उस जजमेंट के अंदर कोई इंटरप्रिटेशन उन्हें कर दिए, सपोज कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन कर दिए, फिर क्या होगा। क्या उसको हम फिर लाकर सीसी में चैलेंज करेंगे कि जी ये इंटरप्रिटेशन तो उनकी बनती नहीं थी, अब इसको खत्म करें, नई इंटरप्रिटेशन करें। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर वो जजमेंट दे दी, उसके इंटरप्रिटेशन कर दिए, तो जब तक वो चैलेंज नहीं होगा, खत्म वो जजमेंट नहीं होगी उसकी इंटरप्रिटेशन, तो वो लोअर कोर्ट्स पे तो बाइंडिंग होगी, तमाम कोर्ट्स पे। फिर उस सूरत में क्या होगा। अगर उसको हम पर इंक्यूरियम भी कहेंगे, तो पर इंक्यूरियम डजंट मीन के कोई भी जज उसको ऑन इट्स ओन कह दे कि जी बस ये तो पर इंक्यूरियम में मैं फॉलो नहीं करता, बल्कि उसके लिए भी तो पूरा एक प्रोसीजर चाहिए। तो ये कुछ इश्यूज थे कि जुरिस्डिक्शन के हवाले से हमें पहले इन सबको देखना होगा, उसकी जरूरत को भी, थैंक क्या यू हमें जरूरत भी है नहीं। निजात, थैंक यू आपने सो मच। बहुत बहुत अच्छे बड़े तफसील से आपने ये चीजें एक्सप्लेन की हैं। मैं अहमद हसन साहब, आपके पास जाने से पहले मैं 1 मिनट हसन न्याजी से एक कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग। जिन जोरिस्डिक्शंस में ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वहां पे पैरेलल इसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी होता है आपके ख्याल में? वो वहां पे भी ये इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है? तो व्हाट आर द सॉल्यूशंस दैट दे have implemented around this? तो फिर उसके बाद मैं अहमद साहब से डिस्कस करूंगी कि यहाँ पे क्या इश्यूज आ सकते हैं मजीद जुरिस्डिक्शन के हवाले से। आई मीन मैं ब्रीफली कहूँगा क्योंकि आई नो और स्पीकर्स भी हैं, मगर मैं आपको सिर्फ एक इसका बता देता हूँ कि ईस्टर्न यूरोप के एक स्कॉलर हैं पोलैंड के, वो वोचनियाक सेडर्स्की उनका नाम है, उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने बहुत लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का एक्सपीरियंस स्पेशली इन ईस्टर्न यूरोप। इन जिस तरह अहमद हसन साहब ने कहा कि आफ्टर अथॉरिटेरियन रजीम्स जो ये सेटअप होते हैं, तो वो ये कहता है कि जनरल जो ट्रेंड देखा गया है, और वो यहाँ के स्पीकर्स की बातों को थोड़ा रीइंफोर्स करता है, उ, उन्होंने जो जनरल ट्रेंड देखा वो ये था कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एस्टैब्लिश हुए
in post-authoritarian countries, pattern of conflict हमेशा देखा गया between these courts on the one hand and the supreme courts of those jurisdictions on the other. और जो अभी सजाद साहब बात कर रहे थे, वो कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो वक्त के साथ उन्हें रिजॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है। ये जुरिस्डिक्शंस कार्व आउट करने में वक्त लगा है इन जुरिस्डिक्शंस में भी। तो इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में जो आपको इशू मेरे मुताबिक इसमें नजर आएगा, गोइंग टू योर क्वेश्चन निदा, इज कि देखें, जब आपका एक सिस्टम है जहां हर प्रोविंशियल हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस डिसाइड करता है, उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद और भी पैरेलल सिस्टम्स हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट का जिक्र हुआ। जब आप अब एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे और पावर ऑब्वियसली आपको लेनी पड़ेगी इन कोर्ट से, तो ये एक इनेविटेबल कॉन्फ्लिक्ट है। कोई भी देखें, कोर्ट्स भी एट टू अ लार्ज एक्सटेंट मेरे मुताबिक पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं, वो भी गार्ड करते हैं अपनी पावर्स को। और पाकिस्तान में एक जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, तो जुडिशरी अपने पावर्स को काफ़ी क्लोजली गार्ड भी करती है। राइट, मैं बांग्लादेश की एक स्कॉलर हैं सिंथिया फरीद, उनका मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जो बात करता है कि ये जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं साउथ एशिया के, उनका क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस एक फ्यूजन विद द एग्जीक्यूटिव का इतना रहा है कि अब वो असर्ट करने की कोशिश बहुत करते हैं अपनी पावर को। एंड इसलिए आप किसी हद तक शायद समझ सकते हो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर टाइप बातें क्यों इन जुरिस्डिक्शंस में आई। मेरे ख्याल से एक इनेविटेबल कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा पाकिस्तान की कोर्ट्स में अगर ये सर, और हाँ बिल्कुल ये नई चीज़ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, मगर जब हमारे एक ऑलरेडी आप देखेंगी हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक फ्रैगमेंटेशन पैदा हो गई है, राइट, ऑन डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ हाउ अ सुप्रीम कोर्ट शुड ऑपरेट। अब एक और उसमें बनेगा, तो आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट इनेविटेबल है और इसका कोई क्लियर कट सोल्यूशन तो मुझे नहीं लगता है। शायद और लोग डिसएग्री करें, मगर मुझे तो ऐसे नजर आता है कि एक इनेविटेबल कॉन्फ्लिक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। बिल्कुल ठीक हो गया। अहमद साहब, आप इस पे क्या कहेंगे कि किस तरह इंटरैक्ट करेगा एक और सेंट्रलाइज कोर्ट स्ट्रक्चर, और ऑल्सो फिजिकली कहाँ लोकेटेड होगा? एक नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, उसके पैसे कहाँ से आएंगे? ऑल ऑफ दैट ऑल्सो प्लीज। थैंक यू। चलें, आई डोंट नो अबाउट वेयर द मनी वुड कम फ्रॉम, बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुझे ज़रा इसका थोड़ा सा एक डिफरेंट अंदाज से इसका जवाब देने दें। कोशिश ये करूँगा कि जो मामलात हसन ने रेज़ किए और जिनकी निशानदेही पहले सजाद कर चुके हैं उनको करूँ एड्रेस। देखिए, ये बात सब हम मान रहे हैं कि इनवेरिएबली आई वुड से जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वहाँ पे पैरेलल जुडिशल स्ट्रक्चर है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा, दिस इज अ स्पेशलाइज्ड कोर्ट, सेंट्रलाइज्ड पावर टू डिटरमिन अ स्पेसिफिक पर्पस ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रेगुलर सिस्टम ऑफ द कोर्ट। तो यस, वो सिस्टम चल रहा है। अब जर्मनी, जहां पर ऑस्ट्रिया के बाद ये बहुत ज्यादा इफेक्टिवली, और जर्मनी में लोग समझते हैं जो कमेंटेटर्स हैं कि बड़ा अच्छा स्पेसिमन है इस तरह की अदालत का, वहां पर बड़े मजेदार केसेस हुए। 50s में झगड़ा शुरू हुआ और वहां पर ये टसल ऐसी चली कि एक कोर्ट को दूसरे कोर्ट के लिए बैक ट्रैक करना पड़ा। एक वाकया ऐसा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने जब अपनी पोजीशन ले ली तो दूसरों ने कहा हम नहीं मानते। उनका तो ये भी हुआ कि गालिबन 70 की बात है या 70s की थी कि उनके सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट्स कहलाते हैं, उन्होंने सबने खत लिखा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सदर को कि भाई ये क्या तमाशा है, तुम हमारे साथ तुमने क्या लगाया हुआ है, और उसके ऊपर एक बैक ट्रैकिंग हुई। तो कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो एकेडमिकली कॉन्स्टिट्यूशनली इशू वाइज स्पीकिंग कि दैट आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लॉ एंड इंश्योरिंग द डिलीवरी of services to the people and also securing and protecting civil liberties। तो उस तरह के जो तसादुम है, सोटू से इंटेलेक्चुअल तसादुम, उनसे तो नहीं घबराना चाहिए, वो तो होंगे। हाँ, अगर टर्फ वॉर शुरू हो गई तो उसकी जो है उसका इशू है। और ये बिल्कुल सही मरियम बीबी ने इशारा दिया, ये बेसिकली एक डिजाइन क्वेश्चन है। अब इधर मैं एक छोटा सा डिफरेंट एंगल आपको सामने सबके रखता हूँ।
जब हम सेपरेशन और ये सजाद ने जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात की ना, उस हवाले से देखिए, हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो डॉक्ट्रिन है ना, उससे अपने आप को जुदा नहीं कर रहे। हमने ये देखा है कि तीनों ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट जो हैं, उसमें एक डिसेंट्रलाइजेशन चली है। एग्जेक्टिव ने, फेडरल, प्रोविंशियल, अब लोकल गवर्नमेंट्स की बात हो रही है। सो देयर इज अ काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर going down to the grassroots, as they say, on the legislative side. इसी तरह एग्जेक्टिव में आप देखते हैं कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस है, कि सरकार में कौन कौन सा महकमा क्या क्या काम करेगा। रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत हमने मुख्तलिफ महकमे बना दिए कार्य सरकार के लिए। इसी तरह हमने स्पेशलाइज्ड इदारे बना दिए, डी रेगुलेशन कर दी। अगर आपको याद होगा, टेलीकॉम सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स हमने स्टेट से लेके डीरेगुलेट करके प्राइवेटाइजेशन। सो हमारे मॉडल में जो जुडिशरी थी वो वाहिद एक ऐसा ऑर्गन था जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कंसिडर की गई। तो यूरोपियन मॉडल जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस का, जो उनका कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स उनको समझ में आया है, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जुडिशियल पावर का एक तरीका ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन की जिम्मेदारी एक मखसूस अदालत को दे दें, बाकी सिविल, क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव भी मामलात हैं वो आप अलग रखें और इनका ओवरलैप ना हो। हाँ, ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई सिविल लॉ कोर्ट या क्रिमिनल लॉ कोर्ट या इवन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कोर्ट फैसला साजी करते हुए आइन से हट जाए। उसको आइन के पैमाने में ही रहना पड़ेगा। उसको आइन के जो अहाता आइन ने कर दिया है जिन मामलात का, उसके अंदर ही अपनी फैसला साजी करना होगी। तो वो उससे डिवोर्स या डिटैच नहीं हो सकता। सवाल क्या है कि क्या उसकी राय उस मामलात पे हतमी होगी या बाइंडिंग होगी या नहीं। तो इस डिस्पेंसेशन में होगा नहीं। और यहां पर बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जिस तरह पेंडिंग केस का सजाद ने जिक्र किया। अब यहां सवाल ये पैदा हो जाएगा कि क्या वो केस, जिस तरह हम प्लीडिंग्स करते हैं पाकिस्तान में, हम प्रिलिमिनरी इश्यूज बना के पहले लिख देते हैं दिस ABCD इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल XYZ। तो अब वो चीज एक तरह से फॉर्मलाइज हो जाएगी। और इसमें यहाँ कुछ सिस्टम्स में ऐसा भी होता है कि सिविल सिस्टम में फर्ज करें केस चल रहा है, वहां पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट हार गया, जिस तरह सजाद ने कहा कि वो क्वेश्चन ही फ्रेम नहीं करता या गलत क्वेश्चन फ्रेम कर देता है, और इसका ये मतलब है कि he has lost it? No. In some jurisdictions, even after having lost a bilateral litigation dispute in the courts of ordinary jurisdiction, the litigant may still have the right to go and invoke jurisdiction of the constitutional court. अब यहां से वेरी ब्रीफली मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं 4 बुलेट्स में। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना, इसकी 4 क्लियर डायमेंशंस हैं। जिस तरह हसन ने वजाहत की ना कि आइन साजी, और मरियम ने भी कहा कि एक तो ये एक्सटेंशन बन गई पार्लियामेंट की, बिल्कुल ठीक है, वो रिव्यू प्रोसेस में है आईनी। बट ये कोर्ट जो है, ये जिसको कहते हैं ना एंटे फैक्टम, ये वो काम भी कर सकता है। अब हमारे मुल्क में ये भी हो चुका है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल पाकिस्तान के सुनाता हूं। आप लोगों को हसबा बिल याद है KPA का, और आपको अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला याद है जब स्टे हो गया था कि बिल अभी बना नहीं है, इसका इफेक्ट नहीं होगा। तो ये क्या था? ये एंटी फैक्टम डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस थी कि अभी इवेंट हुआ नहीं था। तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात कर रहे हैं, हम जिस सोच की बात कर रहे हैं, वो सोच हमारी जूरिस्प्रूडेंस में हमें कहीं ना कहीं किसी और शेप एंड साइज में नजर आती है। इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि दरअसल जो रेगुलर या कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशरी है वो, और ये वाला मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जरिए, दरअसल ये एक ही डेस्टिनेशन की तरफ गामजन है। इनकी मंजिल एक ही है, मगर जरूरी नहीं है कि इन्होंने एक ही रास्ता इख्तियार किया है। हमारा बड़ा लोकल इस्तारे में लाहौर जाना है इस्लामाबाद से, तो कुछ GT रोड से जा रहे हैं, कुछ मोटरवे से जा रहे हैं, लेकिन जाना लाहौर है। और मकसद ये है कि जाते हुए सबका ख्याल रखना है और डेमोक्रेसी को मजबूत रखना है। तो ये कॉन्सेप्चुअल प्लेन है। दूसरी चीज जो ये लॉ बड़ा अहम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एग्जांपल है ना, जो हमारे भी होता है, ये लॉज जो बनाती है पार्लियामान, ये उसको भी रिव्यू और चेक करता है कि भाई ये वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस के मुताबिक है या नहीं है।
और तीसरा जो हमारे यहाँ ऑलरेडी काम होता है एग्जेक्टिव एक्शन का, जो हम रिट जुरिस्डिक्शन की बातें करते हैं, वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सब्जेक्ट मैटर में दुनिया भर में देखा जाता है, आता है। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ ये इम्पीचमेंट चलती है ना, हमारी को वारंटों की रिट सजाद हर तीसरे दिन किसी के खिलाफ कर देते हैं कि भाई बताओ हाउ आर यू होल्डिंग दिस ऑफिस, तो वो जो अपॉइंटमेंट है, इम्पीचमेंट है, इवन अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, ये भी देखा गया है कि कई मॉडल्स में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर आता है। और सबसे अहम चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का बेसिकली इशू क्या है, ये एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन से जो निकला हुआ आइन है, ये उसके हवाले से अपने आप को शेप करता है और मोल्ड करता है। तो इसलिए इसमें सबसे अहम इशू हमने ये देखा कई ममालिक में कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेस है, जो इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन के जुमरे में चीजें आती हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर चली जाती हैं। तो ये बड़ी एक अहम चीज है। और अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रवायती अंदाज का या उस तर्ज का जो दुनिया भर में है मकबूल, अगर हमने वी टेक ऑल द गुडीज, ऑल द स्वीट कुकीज अराउंड द वर्ल्ड एंड पुट इट इन आवर बकेट और बास्केट, तो फिर अल्लाह जाने क्या शेप निकलेगी और क्या बनेगा ईसीपी का। और इस हवाले और या फॉर दैट मैटर सुप्रीम कोर्ट को, इस हवाले से पाकिस्तानी हवाले से मैं गुजारिश ये कर दूं कि आईने पाकिस्तान के तहत 2 ऐसे इदारे हैं जिनका असर रसूख, जिनका इख्तियार, जिनकी जुरिस्डिक्शन में आइन में मखसूस पाबंदी है कि ना वो अब्रिज हो सकते हैं, ना वो टेक अवे हो सकते हैं। एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, गालिबन आर्टिकल 218 के लगभग की कोई शिक होगी, 22 भी हो सकती है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। और एक है एंट्री 55 लिस्ट के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहते हैं कि पार्लियामान ऐसी कानून साजी नहीं करेगा जो इनकी पावर्स या इनका स्कोप जो है जिसको अब्रिज या कर्टेल कर पाए। तो ये एक बड़ा जबरदस्त चैलेंज हो जाएगा। मैंने जिस तरह पहले आपको गालिबन रावलपिंडी बार केस का जिक्र किया था, वो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, तो ये इस तरह के चैलेंजेस बिल्कुल सही कह रहे हैं, आएंगे। अब मैं आपको इसी से वेरी क्विकली बता दूं 4 लिंकेजेस क्या हैं, हाउ डू यू गो टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर ऐसा कोर्ट बन जाए। ये भी एक बड़ा डिबेटेबल इशू है, लेकिन देयर आर ओनली 4 ways that you can go to the constitutional court. पहला तरीका तो ये है कि कोई ऐसा मामला खड़ा हो जाए कि जो हमारे आईनी ऑफिस होल्डर्स हैं, जिस तरह सदर हो गया, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली हो गया, या दीगर ऐसे मामला दुनिया में ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गए या एंटी करप्शन वॉच डॉग्स हो गए, इनके जो सरबराह हैं वो भी सवाल बनाकर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को भेज सकते हैं कि भाई ये आईनी मामला है, इसको रिजॉल्व करो। एक तो ये तरीका है, इसको कहते हैं बाय रेफरेंस, लेट्स से ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर। दूसरा इसका तरीका ये है जिसकी निशानदेही पहले हो चुकी, ये कई ममालिक में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो ये सवाल भी भेज देते हैं। भला किस तरह? अब जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक से ज्यादा पार्टियां पार्लियामान में हैं, वहां पर यह तासुर खड़ा हो जाता है कि उनको पीसा जा रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। तो ऐन मुमकिन है कि एक पार्टी किसी असेंबली में मौजूद है और वो समझती है कि कोई कानून साजी हो रही है जो आईनी तकाजों के ऊपर पूरी नहीं उतरती, तो ऐन मुमकिन है कि वो पार्लियामान में बैठी हुई पार्टी भी ये सवाल भेज सकती है ऐसी अदालत को। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डायनामिक या हो सकता है, जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में ये रियलिटी भी बन सकता है। तीसरी चीज यहां पहुंचने का तरीका ये है कि एक अदालत है, ऑर्डिनरी अदालत है, सिविल है, क्रिमिनल है, जो भी है, जब उसके पास कोई ऐसा केस आता है और वो समझता है कि ओहो अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बन गया हुआ है और ये मामला जो है ये तो आईनी आ गया, तो वो रेफर कर दे। ये तीसरा है। और जो चौथा है वो है डायरेक्ट बाय अ इंडिविजुअल और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम जानते हैं, वो भी बजरिया वो भी चला जाए। तो हमने देखना और याद रखना ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का 100 साल के करीब पहले अगर ज्यादा सफर जारी हुआ, तो तब इन एब्स्ट्रैक्टो कहते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट, ये इन एब्स्ट्रैक्टो डिसाइड करना था कि भाई लेट्स टॉक अबाउट दिस एकेडमिकली, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्चुअली कि क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी। लेकिन हमने देखा कि ये ऑस्ट्रियन मॉडल जो था इन एब्स्ट्रैक्टो का, ये ज्यादा देर नहीं चला
और इवन ऑस्ट्रिया में भी और फिर जर्मनी में भी और फिर पोलैंड तो काफी अच्छा समझा जाता है। इटली और स्पेन जो है वो बड़े ही मजेदार जुरिस्डिक्शंस हैं, उनके बड़े फैसिनेटिंग केसेस है। यहाँ तक कि इटली में गालिबन या स्पेन में, मुझे अब याद, मेरे ख्याल में स्पेन है, उसमें तो एक दफा क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल जज ने दूसरे जज के को फाइन कर दिया, उन्होंने कहा तुम्हें मैं फाइन करता हूँ तुम्हारे इस फैसले के ऊपर। वो एक नया तमाशा खड़ा हो गया वहां पर। सो ये बड़ी इस डिसिप्लिन की बड़ी जबरदस्त एंगेजमेंट है। तो मुझे ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान में भी कभी कोई जज बैठा किसी और दूसरे जज को 5,000 रुपए का फाइन कर दे, लेकिन क्या पता है यहाँ पर। सो सही ये बात है। सारी चीजें जो बिल्कुल हमने अहमद देखनी है। साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें रखी हैं सामने। मैं सारा मलकानी की तरफ जाना चाहूंगी कि वो हमें थोड़ा सा सिंध का पर्सपेक्टिव भी शेयर करें, और ये जितनी भी कॉन्वर्सेशन अब तक हुई है सारा, उस पे भी अगर आपके कोई इनपुट है या थॉट्स हैं वो भी शेयर करें। बट आई ऑल्सो स्पेसिफिकली वांट टू नो कि आपके ख्याल में क्या की चैलेंजेस हैं, चाहे नेशनल सतह पे या प्रोविंशियल सतह पे, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोड इन पाकिस्तान में पोटेंशली एक चैलेंज हो सकते हैं। आई नो इस पे कुछ बात ऑलरेडी हो भी चुकी है, बट अगर आप इस पे या इससे पहले जो भी कॉन्वर्सेशन हुई थी, if you want to add your perspective, please, the floor is yours. Sure. Thank you so much, Nida. And, I've really enjoyed hearing all the other speakers. और शायद मुझे कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ें ऐड करने के लिए ना हो, बहुत कुछ बात हो चुकी है और बहुत important points already raise हो चुके हैं, लेकिन शायद कुछ चीज़ें मैं emphasize करूँगी और जो शायद मेरे खुद का perspective है वो भी बयान करने की कोशिश करूँगी. So, I mean, obviously, I think, when you're talking about whether we want constitutional courts and what we want the design of constitutional courts to be. So the first question is, why do we want to have them in the first place, right? What is the problem that we're trying to solve? I think if I understand correctly, Nida, शुरू बिल्कुल इस सेशन के शुरू में आपने कहा था कि कुछ जो इस पे बातें हो रही हैं वो ये हैं कि हमारे जो ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत ओवरबर्डन्ड है विद मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रिलेटेड जो पॉलिटिकल इश्यूज और डिस्प्यूट्स आ जाते हैं वो भी बहुत ओवरबर्डन्ड हो चुके हैं. तो एक रैशनल ये दिया जाता है कि शायद हमें इस वजह से एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत है कि ये बर्डन थोड़ा सा कम हो. सो दैट माइट बी प्रपोज्ड एज वन ऑफ द रीजंस फॉर हैविंग इट. सो I think that kind of raises the question that, why is this kind of overburdening the court, Supreme Court, high courts to an extent, but, we're seeing it with the Supreme Court to a very large extent for many, many years now. Why are they being overburdened with these, with these political questions that have a lot of significance for power relations in this country, right? And why are the Supreme Courts steering the political future of this country to the extent that they are? And I think obviously one thing is that given that our Supreme Court and to some extent the high courts do have this power of judicial review, which has been alluded to earlier, right? And which is the fundamental power of any constitutional court, including a separate constitutional court. So what we're seeing is that because a lot of our other institutions, our executive and our legislatures are unable for many reasons to resolve these problems within themselves, these issues are then being taken to a Supreme Court. And the Supreme Court is also, from time to time, in some periods more than others, been very eager to take on these cases and assume jurisdiction of these cases and decide these questions with a lot of, with a lot of emphasis and making it very clear to the world that they are deciding these questions as the ultimate arbiter. तो ये क्यों हो रहा है शायद हम सबको पता है, लेकिन इसके कुछ consequences भी हमने देखे हैं और इसके कुछ negative consequences भी हमने देखे हैं, right? Apart from the higher court, Supreme Court, being so overburdened with these questions, maybe at the expense of other cases that it should be dealing with in its appellate jurisdiction especially, the other consequences कि शायद हमारे courts की perception पे भी बहुत impact होता है. उनकी जो इंडिपेंडेंस के बारे में जो जनरल पब्लिक में राय है उस पे भी बहुत इम्पैक्ट होता है जब भी किसी
पॉलिटिकल इशू पे सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, या जब भी उनका कोई फैसला किसी एक पॉलिटिकल तबके को किसी खास तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो अभी जो एक हमारा as high courts and supreme courts are playing the role of a constitutional court to the extent that they are exercising these powers of judicial review, the question then is that if you want to make a separate constitutional court, right, would these problems be alleviated, or would these problems still persist? And I think जो मरियम ने बहुत important point जो raise किया था कि maybe if this proposed reform would fall in that category of tribunalization and then replication, right? What reason do we have to think that the problems here of this court being overburdened with these political questions, and then also generating kind of some negative opinions and impressions as a result, is something that a separate constitutional court will also have to face. अब आप जिस तरह उसको डिज़ाइन करेंगे वो मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइंस हैं, इस पे हमने ऑलरेडी काफ़ी बात की है। शायद डिज़ाइन उसको कुछ हद तक इम्पैक्ट करे, लेकिन आई थिंक बाय एंड लार्ज जो मसाइल हैं जो हम कह रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने की वजह है ये मसाइल, लेकिन कोई साफ मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वही मसाइल फिर एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में क्यों नहीं ट्रांसफ़र होंगे। और फिर वही सवाल जो हम इन जुडिशरी के बारे में जो हम रेस करते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि फिर इसके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, जो जजेस हैं उनकी इंडिपेंडेंस किस तरह बरकरार रहेगी, किस तरह मॉनिटर करना है, वही सवाल फिर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी रेस करने पड़ेंगे, राइट? सो इफ वी आर नॉट एबल टू रिजॉल्व दीज क्वेश्चंस to some degree of satisfaction with our current setup, then I think we should expect that the same questions will come up in the setup of a separate constitutional court as well, right? Absolutely. I'll just want to interject here and bring in the same जो आपने बात की कि जेंडर से रिलेटेड भी फिर वही कंसर्न्स होंगे कि यहाँ पे भी ये वही बात करते हैं कि जी जजेस उसी तरह अपॉइंट होंगे जैसे होते हैं फॉर अदर कोर्ट्स, एंड इन दैट अब जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें तो यही था कि जी जो आप एलिजिबिलिटी है फॉर एनीबडी टू बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, उसी में से आप जो है आगे इक्वल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में अगर ये बनता है। तो उसमें फिर खवातीन की नुमाइंदगी कैसे इंश्योर करेंगे, माइनॉरिटीज की कैसे इंश्योर करेंगे, अगेन उसके ऊपर फिलहाल साइलेंस एंड देयर इज नो कॉन्वर्सेशन ऑन द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज समथिंग दैट वी एज वुमेन इन लॉ हैव are very concerned about it. So uske upar if you want to like throw some light on, you know, if it does come into being, तो क्या इसका मैकेनिज्म इतना सिंपलिस्टिक होना चाहिए कि एक लाइन में बस लिख दें कि जी जजेस उसी तरह अपॉइंट होंगे जैसे होते आए हैं, या फिर इसको मजीद मतलब स्ट्रक्चर और मजीद इस पे और क्या हो सकते हैं वो, व्हाट कैन दोज डिटेल्ड सॉर्ट ऑफ न्यूएंसेस बी इन योर ओपिनियन, particularly with gender and minority representation? So, you know, I think कि again, Nida, as you pointed out, वही सवाल अभी जो हमारा current setup है उसमें ये, you know, these questions, these problems are being raised of representation, right? As you said कि gender representation is still very little. It's improving to some extent, but it's still very little. और उसकी जो basic जो reasons हैं, you know, you've done so much work on highlighting those reasons, right? I mean, you know, some of the reasons also being, one of the reasons being that because representation among lawyers is limited, and then there is limited opportunities to then actually progress within the bar, right? So then getting appointed to the High Court, which is the primary way in which we're going to, you know, funnel people into the Supreme Court, वो एक बड़ा बैरियर है। फिर उसके अलावा हमारी क्योंकि लोअर जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन भी कम है, राइट, तो वहाँ से एडवांसमेंट के भी ऑब्वियसली चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जहाँ तक मुझे अंडरस्टैंडिंग है ये रिप्रेजेंटेशन के सवाल, खासतौर से जेंडर रिप्रेजेंटेशन के सवाल तो इतने बुनियादी हैं, राइट, बिकॉज एक्चुअली गोइंग नॉट एट द हायर, द नॉट the root cause of them is actually going
to the grassroots of the legal profession, right? So unless we're dealing properly with the grassroots problems in the legal profession, which I know, you are as women in law, and other people are trying to do that too, but a lot more work still has to be done, then those problems will persist at the higher levels also, and then those problems are likely to persist in any special constitutional court also, right? तो अगेन आई थिंक गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट कि मतलब ये बिल्कुल भी एक अपेरेंट चीज़ नहीं है कि एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने से ये जो बुनियादी इश्यूज हैं ये वहाँ पर ट्रांसप्लांट नहीं होंगे, राइट? गोइंग बैक टू what Mariam said about tribunalization and then replication, which we see with so many other efforts to carve out separate institutions without actually addressing the fundamental problems themselves, which need to be addressed, right? So I think very briefly, because I was just, as I was thinking कि कुछ जो इस proposal में कुछ issues जो सामने आ सकते हैं, so I just very briefly jotted down maybe what some of the potential perceived advantages in theory could be, right? And then also some of the disadvantages. So on a very high level, advantages तो हमने और हम हाई लेवल पे कर सकते हैं क्योंकि इतना स्पेसिफिक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का प्रपोजल हमारे सामने है नहीं, बट obviously in theory the idea that you have a court that has judges with considerable expertise in deciding how constitutional law is to be applied to executive and legislative action can actually improve the functioning of governance and also ensure that the constitution is being applied and upheld, right? So obviously we see that in theory a constitutional court can serve that function, and then again depending on how it's designed, it can also increase access to justice, right? Agar to some extent it is even hearing individual complaints or complaints of group, which I think some constitutional courts do, it might actually lead to more redress for fundamental rights. So theoretical advantages तो I think हमारे सामने हैं, लेकिन application में बात आ जाती है, right? क्योंकि ये एक्चुअली किस तरह, एक तो फिर डिज़ाइन का सवाल और फिर दूसरा कि इसमें जो एक्टर्स शामिल होंगे वो किस तरह इस चीज़ को सामने लेके जाएंगे, राइट? तो इसमें जो कुछ पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस जो नज़र आते हैं वो ऑब्वियसली एक तो ये है कि अभी जो हमें सुप्रीम कोर्ट का एक जो क्रिटिसिज्म सामने आता है वो ये है कि जो in their judicial review they are overstepping the role into the other roles, right? So they're undermining separation of powers by undermining the executive or undermining the legislature in some cases, right? And we've seen in some Supreme Courts more than others, but that is a criticism and that's something to be aware of. So that issue will come up with a separate constitutional court also, right? Unless you have judges that are exercising real restraint, they might even feel even more empowered than some of our very activist judges have already felt in the Supreme Court. They might feel even more empowered to overstep these boundaries, right? So it's a danger that I think we have to keep in mind. And then also I think the question of, I think जब हम इतना focus करते हैं on constitutional courts, judicial review taking place at the highest level, तो उससे जो हमारी जो ordinary justice है वो काफ़ी de-emphasize हो सकता है, और आई थिंक ऑलरेडी हमारी डिस्कोर्स में हुआ भी है, राइट? बिकॉज देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, यस जुडिशियल रिव्यू तो हमारी लोअर कोर्ट्स नहीं करते, क्रिमिनल कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स तो नहीं करते directly speaking, but in many ways they are the ones that are playing this very crucial role of seeing how fundamental rights are enforced or not enforced on a day-to-day basis, right? जब आपके criminal courts are deciding whether or not to give bail or deciding whether or not to, remand somebody to police custody for another 10 days, or whether or not evidence is admissible, they are deciding questions of fundamental right and limiting executive action in a way that is very, very important, right? तो अगर हम इन सबको मतलब अगर हम and I think we are facing this problem and have for many years, that a lot of compartmentalizing fundamental rights questions and giving this very
putting our high courts and Supreme Court on a pedestal to a large extent, at the cost of, ignoring the role of the lower courts, also maybe giving the attention that appointment of the lower judiciary deserves, the resources that they need, the monitoring that they need, and thinking that that a problem can be solved at the highest level of governance while ignoring what will happen at the more ordinary level, I think would also be a potential cost of a separate constitutional court. So I think I will just stop there with some No, of these thank you so reflections. much. I think that really connects a lot of dots. So with this, I want to jump to Dr. Mariam again. इसी से हम connect करते हैं कि constitutional code की जो implications हैं फिर rule of law के ऊपर या फिर access to justice के ऊपर in पाकिस्तान, वो मतलब किस तरह की होंगी, बेहतरी आएगी या नहीं, या वो और complicated हो जाएगा मसला, आम आदमी के पहुंच से कितना उस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और इसका जो इस सब चीज का जो एक इफेक्ट होगा पब्लिक परसेप्शन के ऊपर या ट्रस्ट इन जुडिशरी के ऊपर, वो कैसे फिर होगा या नहीं होगा, वो सारा इंटरप्ले जो है, डॉक्टर मरियम इफ यू कैन टॉक अबाउट दैट. उसके बाद हम हसन की तरफ जाएंगे ऑन how the stakeholders should basically approach all of these challenges. So हम implications कर लें cover, फिर हम solutions की तरफ बढ़ेंगे. So Dr. Mariam, over to you. Thank you, Nida. I think ये दो बहुत बड़े सवाल हैं. So I'll try and get through at least the first one, the implications for rule of law and access to justice, and maybe come back on public perception and trust if you think I'm running out of time. ठीक है, please feel free to stop me. लेकिन ये I think मुख्तलिफ तरीकों से सारों ने इस सवाल का already जवाब दिया है, and so मैं ये करूँगी, I'll just organize these thoughts in like 5 bullet points, I'd say. Okay? And I'll lay down what the supposed objective might be, and then say a bit about, how that could actually work in practice given our own history and context. तो पहली चीज ये है, बार बार कहा जा रहा है कि ये जो सेपरेशन है फंक्शनल, इससे आपका बैकलॉग रिजॉल्व होगा और पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का होगा. और उसके अंदर मैं आई थिंक सारा की बात आगे ले जाना चाहूंगी कि ये एक किस्म की रेड हेरिंग है, क्योंकि अगर आप बैकलॉग के बारे में अगर आपको इतना एहसास है तो वो उसका रिफॉर्म ग्राउंड अप होना चाहिए, वो टॉप डाउन रिफॉर्म वाली चीज नहीं है, बिकॉज you have to start from the base of the pyramid. वो सारे मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं, और ये नहीं है कि हमारे पास उन प्रॉब्लम्स के डायग्नोस्टिक्स नहीं है. A lot of people have done a lot of rigorous research on the question of delay, on the question of inefficiencies, on the question broadly of substantive injustice. और उस चीज को हम हाथ नहीं लगाना चाहते बिकॉज वो एक बहुत टॉल ऑर्डर है और उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए जिसके लिए आपको पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी चाहिए. सो एक तो प्रॉब्लम ये है कि ये बैकलॉग वाली जो चीज है ना, ये मुझे बहुत बड़ी रेड हेरिंग लगती है, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द रियल इश्यूज लगती है. और दूसरा इसका अदर साइड ऑफ द कॉइन इज कि हु इज टू से कि जब ये नया कोर्ट बनेगा यहाँ पे बैकलॉग नहीं बढ़ेगा. लाइक आई सेड, आपने जो कोर्ट्स नए खोले हैं, ट्राइब्यूनल्स खोले हैं, विद इन अ फ्यू इयर्स योर बैकलॉग has been hitting through the roof. आप consumer courts ले लें, आप कोई भी और ले लें. So this is what some scholars interestingly call the judicialization not just of politics but of the constitution. कि हर चीज जो है वो एक constitutional issue बन गया. Right? You can fathom a situation where every little thing is a constitutional question, or at least the judiciary is very well equipped to frame issues in a constitutional way ताकि वो jurisdiction और power exercise कर सके. और ये हमारी history में एक पैटर्न नजर आ रहा है. सो एक तो ये है, आई डोंट वांट टू फीड इनटू द कॉलोनियल एक जो ट्रोप था कि हम बड़े लिटिजियस लोग हैं साउथ एशिया में, बट द पॉइंट इज कि जहाँ पे आपकी सारी पॉलिटिकल इदारे, इंस्टीट्यूशंस और चैनल्स और प्रोसेसेस इतने डिसफंक्शनल हैं, तो वो कोर्ट एक एपिटोम ऑफ स्टेबिलिटी नजर आता है, या कम से कम कुछ साल पहले तक नजर आ रहा था. तो सारा जो ट्रैफिक है आपका, सो टू से, of resolution of disputes, so uski taraf jayega. So that's one thing to consider. The second thing is, okay, the second possible objective is कि जी हम efficient adjudication चाह रहे हैं constitutional issues. So अगर backlog को इस सवाल से हम हटा भी दें तो once again ये एक बड़ी flawed सी assumption है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि
what system do we have in place for understanding or recognizing judicial receptiveness and accountability? Efficiency तो आप उस वक्त सिर्फ numbers से तो नहीं आप efficiency gain करते. There are many other metrics, and we have no till date. I mean, appointments का भी आपने structure देख लिया है. कब से वो conversation चल रही है? We've not been able to receive any kind of resolution on that question. So the question of efficiency is a very tough one. It has various meanings, and you know, nor is that kind of thing कि जी अगर आप ये functional separation कर देंगे तो एक आपको safeguard मिल जाएगा against the episodic manipulation or appending of your precedents. That's another real problem that we have. आज ये precedent है, कल आप totally opposite direction में जाएंगे because you have this strange kind of political instability, and you're on the one hand you're trying to be a custodian of democratization, on the other you are collaborating with the military executive. So this is not going to resolve the efficiency question. And this is an ubiquitous problem in our constitutional jurisprudence. Third point, if you want कि जी हम political interference और engineering को in constitutional adjudication undercut करना चाहते हैं, control या minimize करना चाहते हैं, interesting point, right? Because you could say कि यहाँ पे bench politics नहीं होगी, एक bench होगा, जिस तरह US का जो आपका Federal Supreme Court है, वो सारे judges हर constitutional case को सुनेंगे, right? So bench politics नहीं होगी, judges specialized होंगे, और आपका explicit कोई term होगा judicial tenure पे 6 साल या जो भी. But उसके अंदर भी, I mean, new forms of capture and engineering will emerge. Your military or the third parties, I call it as a euphemism, has always found adaptations and ways around. The problem is you are not undercutting their political power. You're just trying to bypass it. They will find a way to resolve it in their favor. And then you also have to realize that a constitutional court like this will have so much concentration of power. एक जो point सारा ने उठाया है कि your legislative and judicial relationship is probably, I mean, that conflict is going to worsen in many ways. It could. I mean, it's not going to be resolved. Certainly, it can only worsen. And totally new membership every 6 years. So no continuity in terms of the membership of the court, which means that once again, I think that's a huge risk in terms of the kind of jurisprudence that's going to come out of there, because the next court might want to get a one up on the previous one. You know, there will be that kind of legacy competition going on. It will be heightened, mera khayal se. Fourth point, principle of federal representation, great. I think this is one of the biggest advantages. It could lessen the friction among political units. But I think it's also attached to the assumption that जो cases आएंगे इस court के सामने वो qualitatively different तरीके से decide होंगे, क्योंकि आपकी representation अलग होगी. लेकिन once again वो सवाल इतना उसका गहरा एक nexus है with your appointments process, और वो कितना inclusive है, कितना transparent है, right? Sorry, am I still here? There's a little bit of a glitch in the Zoom. You're still here. You're still Okay, here. still here. Okay. And the fifth and final point I want to raise is कि maybe the objective is कि आप general courts की, non-constitutional courts की jurisdiction को insulate कर दें, ताकि वो आपके जो political fallout है of constitutional litigation, उससे वो safeguard हो जाए. But here I would have to agree with Sajjad Saab, and I would, with respect, have to disagree somewhat with Ahmed Shah Saab, even though your point is so valid. कि ये intellectual you know clashes or competition or conflict तो होता है, लेकिन I feel that in our context, in this kind of an intrajudicial conflict, you have a third party which is always looking to exploit divisions, and this will be yet another great divide that they can easily exploit, another institutional divide for them to exploit. I think you could also see a situation where constitutional challenges go up, turf wars increase, and you know contestations becoming exploited. So I'm going to stop there, and I can come back to the trust question, Nida, later if you think that's better. Yeah. Right. Thank you so much, Dr. Mariam. I am actually, we can discuss it quickly if possible, because then I just like to move towards the Q&A also. तो उसके बाद हसन के बस closing जो remarks मुझे चाहिए थे on how to approach these challenges वो हम लेंगे. So, Dr. Mariam, if you want to quickly just
throw some light on it, तो हम इसको करें, क्योंकि then we have to take some questions from the participants as well. So if you want to take a few more minutes to wrap that up, please do that. ठीक है जी. So पहली बात ये है कि I think somebody should do this in Pakistan. कोई perception survey होना चाहिए judges का, and I did a perception survey amongst lawyers regarding judges 2017-18 में around the 10-year benchmark after the lawyers movement, and उस वक्त बड़ा एक clear distinct pattern था कि lawyers जो थे आपके, जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या लाहौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हमने किया था with different levels of licenses, and every, I mean 80 to 90% metrics जो थे of deciding कि क्या trust के metrics हैं या उसके अंदर, the perception of Supreme Court judges was always very high, high courts slightly lower, and then all your lower courts, like really, I mean, the numbers just plummeted, right? And so at that time, lawyers still felt that the Supreme Court judges had a lot of competence and integrity and were providing substantive justice. I don't know what that lawyer's perception is right now. I would think guess that was even before that is live. falling. That was before live recordings. Live Yes, yeah. I want to come to that. So public perception का तो हमारे पास कोई study ही नहीं है, but my hunch is that we are at an all-time low. उसकी वजह ये भी है कि आपका जो litigants हैं या public हैं, उनका distance आपका Supreme Court से बहुत कम हो गया है, right? Because of social media, because of these live streaming, whatever cases. So, so many things are now about optics, right? पहले आपका वो print media version हुआ, फिर आपके वो broadcast media हुआ, उससे भी हमें ये अंदाजा हुआ, but now it's a different story. It's like a several notches above that, and I feel कि ये जो आपके politician judges हैं ना, they are catering to the lowest common denominator. It's very hard for them now to remove themselves from public opinion, public perception, all of that. And my guess is that we should not expect institutional design or redesign to reform this problem of lack of public trust in the judiciary, because because I mean, as long as you have a very little gap between the judges in the court and the observers, now these are not only litigants, they're general observers. So even by association with certain litigants are going to come to certain conclusions, right? Which was not the case earlier. Pehle to aapko, you had to actually be a litigant to understand how the court works. Now it's a totally different ball game, and it can be manipulated, it can be exploited, and so I don't know if this question of design or having a specialized constitutional court is going to do anything in terms of restoring trust. Thank you so much. That was very reassuring. I think हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट नहीं सही, आप सही कह रही हैं. आपकी इजाजत से निदा मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, very quickly सर. ये जो challenges की बात हो रही है ना, आप देखें, क्योंकि this is a webinar ना, तो we are exploring academic options here, और हम चाह रहे हैं कि perspectives हों, तो उस spirit में बातें हो रही हैं, not necessarily कि पाकिस्तान में ये अच्छा है बुरा. अभी वो आखिरी सवाल है आपका. अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा तो उसको जो सबसे पहला डिलेमा होगा ना, वो ये होगा कि क्या वो प्रोएक्टिव हो या वो रिएक्टिव हो. ये हमारा एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान. अगर वो प्रोएक्टिव होगा तो फिर देखना होगा कि वो प्रोएक्टिव एक्शन जो है वो पॉलिटिकल डिवाइड के किस तरफ जा रहा है. बिल्कुल. तो वो कंट्रोवर्सी को ही जन्म देगा. सही. दूसरी चीज हमने बिल्कुल सही निशानदेही की कि एक नया काडर जमा हो गया है मीडिया में. तो अगर ऐसा कोई आईनी अदालत बन जाती है तो रेस्ट एश्योर्ड कि एक नया काडर जमा हो जाएगा और एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी और एक नई इंफॉर्मेशन बैंक बन जाएगा. अब अलमिया पाकिस्तान का ये है कि जितनी सोशल मीडिया पे डिबेट है, मगर अगर आप उसका मवाजना करें कि पाकिस्तान में क्या लीगल स्कॉलरशिप है उस लेवल की, जिस लेवल की डिबेट हो रही है, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, वो नंबर्स,
हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब आए हैं, और बहुत कम लीगल स्कॉलर्स हैं। तो अगर आपने इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशंस करनी है तो वो काडर कहाँ से आएगा? तो अपॉइंटमेंट के हवाले से जो दुनिया में देखा जाता है, वहां पर सिर्फ जजों की और वकीलों की इजारादारी नहीं है ऐसी अदालतों में। तो दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं जहां पर मंजे हुए सियासतदान भी जज लगे हैं, वहां पे बिल्कुल रिस्पेक्टेड इंटेग्रिटी अपराइट ब्यूरोक्रेट्स भी लगे हैं, और वहां पे स्कॉलर्स ऑफ लीगल स्कॉलरशिप के लोग भी लगे हैं। अब हमारे जो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी को ही देख लेते हैं कि जो हमारा सो कॉल्ड प्रॉमिस फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का स्प्रिंग बोर्ड है, उसने वही मयार तयन किया है जो पहले था। वो कहते हैं जी कि इस अदालत जब ये बनाएंगे हम, तो इसमें जो जज साहिबान लगेंगे ये वही लोग होंगे जो आर एलिजिबल और क्वालिफाइड टू बिकम जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो इसका मतलब क्या है कि वही इजारादारी कुछ कायम रहेगी। एग्जैक्टली रिफॉर्म कर भी रहे हैं, लेकिन तो अभी भी हम अपॉइंटमेंट, अपने उसको वसी नहीं कर रहे। अपॉइंटमेंट का जो प्रॉब्लम है वो और कॉन्फाउंड हो जाएगा। अब ये रिकग्निशन लानी पड़ेगी हमारे सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में। देखिए हमारी बार काउंसिल तक तो आज एक एकेडमिक वकील को अपना हिस्सा नहीं मानती, तो जब बार काउंसिल उसको हिस्सा नहीं मानती अपने एक्टिव बार का, तो उसको निजाम अदल कैसे माने? ये बड़ा अफसोस का मकाम है कि हम लेकिन वो जब यंग लीगल लोगों को, एजुकेशन रेगुलेट करनी लोगों होती है और हम उनको एनओसीज देने encourage ही नहीं होते हैं करते। और पैसे अब लेने आप होते देखिए हैं बच्चों से, तब तो वो मानते अब हैं देखिए उन्हें। हम सब लोगों को जिनको बाहर इत्तेफाक हुआ तालीम का, हमारे इसातिज़ा जो थे उनके कंटेम्पररी वो ऑथर्स थे अपने सब्जेक्ट के। सही। तो हम लोगों ने उन लोगों से पढ़ा जिन लोगों ने कंटेम्पररी किताबें लिखी हुई हैं, जो भी हैं। सो ये कल्चर हमारे मुल्क में भी आना होगा। यहाँ पर रिस्पेक्टफुली मैं कहूंगा कि जज साहब रिटायर होने के बाद दूसरी नौकरी तलाश करते हैं, उनको चाहिए कि नहीं यार तुम एकेडमिक स्कॉलरशिप के ऊपर आ जाओ, तो वे पेंशन तो मिल रही है ना, तो आओ और अपने एक्सपीरियंस से करो जिस तरह बाकी काम करते हैं दुनिया भर में, हेल्प द लीगल सिस्टम। लेकिन ये हमारे यहाँ ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे दे वुड लाइक टू गो फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इवन आफ्टर रिटायरमेंट। इसका जो एक बहुत अलग एस्पेक्ट जिसमें हाईलाइट करना चाहता हूँ, अगर ऐसा कोर्ट बना तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? ये कोर्ट रिकन्फिगर कर रहा है नेशनल पॉलिटिक्स को इन अ मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टी सिस्टम। तो क्या ऐसा ड्रास्टिक या ऐसा वसी स्टेप विदाउट ग्रास रूट्स पार्टिसिपेशन हो जाना चाहिए? मुझे जो सबसे अजीब और गरीब बात लगती है वो ये नहीं लगती कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बहस हो रही है। मुझे ताज्जुब इस बात से होता है कि इस बहस की कोई पार्टिसिपेशन, ग्रास रूट से डिस्कशन, कोई राउंड टेबल, कोई सेमिनार कुछ हुआ ही नहीं है। आपने ये पहली मेरे ख्याल में कोशिश की है अपने इस ग्रुप में कि भाई ये बात हो। तो फर्ज करें ये साल 2 साल हो जाती तो फिर खुद ही पता लग जाता कि कैसी आएगी, और अगर ऐसी होती रही है तो उसको ओपन करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक और आखिरी एक दो बातें करना चाहता हूँ, फिर हम अगर चले जाएं कि जो एडवांटेज समझा जाता है ना ऐसी अदालत का, वो यकीनन एफिशिएंसी है। और एफिशिएंसी कैसे आती है? वो दो चीजों से आती है। एक तो स्पेशलाइज कार्डर है जजेस का, जो एक्सपर्ट्स होते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर महारत रखते हैं, तो वो एक सर्टेनिटी ऑफ आउटकम को अश्योर करते हैं, इंश्योर करते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि उनकी यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग आ जाती है। लेकिन आपको पता है लॉ में यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग का मतलब स्टैग्नेशन नहीं है। लॉ सोसाइटी के अंदर एम्बेड है, एम्बेड सोसाइटी बाय नेचर इवॉल्विंग है, इट्स अ डायनामिक प्रोसेस। सो ये चीजें हैं जो चलती रहेंगी। तो हर सिस्टम जो है उसको डायनामिक होना है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये रेसिपी फॉर कॉम्प्लिकेशन है। इसमें अदालती निज़ाम के अंदर इंट्रा जुडिशल स्ट्रक्चर्स कॉन्फ्लिक्ट होगा। इससे सबसे बड़ा रिस्क ये है, अब इसकी तरफ भी निशानदेही मैं इसको एक और अंदाज से कहता हूं, हम हर वक्त रोते गाते रहते हैं इंडिपेंडेंट जज, इंडिपेंडेंट जज।
ओ भाई ठीक है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में खाली इंडिपेंडेंट जज नहीं चलता, दुनिया का एक्सपीरियंस ये बताता है कि इंडिपेंडेंट जज फॉर द राइट रीजंस द राइट डिसीजन मेक करे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली राइट डिसीजंस भी रॉन्ग रीजंस पे होते हैं, और रॉन्ग रीजंस भी कई दफा राइट डिसीजंस की so हमारा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का सिचुएशन है। तो ये डिबेट होनी चाहिए, और अगर सस्टेन करनी है, और सबसे बड़ा थ्रेट इसमें म्यांमार का एग्जांपल है, इसमें पोलैंड का एग्जांपल है, इसमें नाइजर का एग्जांपल है, थाईलैंड का एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जहां पर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, दे देमसेल्व्स बिकम ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी। सो जो सेंसिटिव डेमोक्रेसीज होती हैं, जहां पे अभी ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो बिटवीन द अथॉरिटेरियन और द मिलिट्री एंड द सिविल नहीं अकर किया, वहां पर ऐसा कोर्ट जो है वो नेगेटिव देखा गया है। तो इसलिए इजिप्ट का भी एग्जांपल है, बट इजिप्ट के हवाले से बिल्कुल अक्सर लोग ये समझते हैं कि उसने डेमोक्रेटाइजेशन में असिस्ट किया है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। सही सही, नहीं आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। मैं बस अब इसको रैप अप करूंगी विद योर वन वर्ड आंसर्स एवरीवन, लेकिन उससे पहले क्विकली हसन, जस्ट इन 2 मिनट्स अगर आप थोड़ा सा बता सकें, हसन न्याजी से मुखातिब हूं मैं, कि इतने सारे चैलेंजेस आपने सुने इस कोर्ट से मुतल्लिक, तो आपके ख्याल में कैसे अप्रोच करना चाहिए स्टेक होल्डर्स को, इंक्लूडिंग लॉ मेकर्स, जजेस और जो लीगल कम्युनिटी है या मीडिया भी है, जर्नलिस्ट है हमारे, आप क्या उन्हें कहेंगे कि हाउ शुड दे अप्रोच दिस, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस पे रिपोर्टिंग करनी चाहिए, कैसे इस बारे में बात होनी चाहिए माशरे में और हमारे एकेडमिक सेंटर्स के अंदर भी, आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर, हसन न्याजी? मैं तो एको करूंगा बहुत सारी चीज़ें जो डॉक्टर मरियम ने कही हैं यहाँ पे। देखिए निदा, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हमने बात तो की ऑन अ कंसेप्चुअल लेवल ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के प्रोज एंड कॉन्स, मगर ये पाकिस्तान में क्यों लाया जा रहा है या इसका प्रपोजल क्यों दिया जा रहा है, उसका मकसद क्या है। देखें, रेड हेरिंग की बात हुई, एक तरफ आप कहते हैं कि जी बैकलॉग बहुत है सुप्रीम कोर्ट में। पहले तो आप तमाम डेटा देखिए कि कितने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ही सबसे ज्यादा हैं, या क्या बाकी सिविल क्रिमिनल वगैरह केसेस सबसे ज्यादा हैं आपके? इस पे तो गौर करें। इसके देखें, इस फंडामेंटली क्वांटिटेटिव डेटा के बगैर आप ये क्लेम नहीं कर सकते। मगर चलें, लेट्स से कि वो है भी सही, राइट? अव्वल तो मुझे लगता है वो नहीं है। आई डोंट थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सबसे ज्यादा हैं सुप्रीम कोर्ट में। बट देखिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप बेशुमार, हम जब भी जुडिशल रिफॉर्म की बात करते हैं, हम इन स्ट्रक्चरल इश्यूज को किस तरह हैंडल करते हैं? या हम कहते हैं मजीद और कोर्ट बना दें, या हम कहते हैं और जजेस लगा दें। इन दोनों तरीकों से आपके स्ट्रक्चरल इश्यूज ऑफ डिले इन द जस्टिस सिस्टम, बैकलॉग नहीं खत्म होंगे। इसी तरह जो डॉक्टर मरियम ने भी बात की, अगर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, और इस पे बहुत लिटरेचर है, लोगों ने काम किया है, सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, आप विल नहीं एक्सरसाइज कर रहे बियॉन्ड थिंकिंग अबाउट इमीडिएट टर्म, राइट? अभी पूरा मुल्क जो है पिछले 4-5 महीनों से सिर्फ एक जजेस की रिटायरमेंट एज की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अराउंड घूम रही है, बात घूम रही है ना, चाहे वो है नहीं है, जुडिशल पैकेज रोज एक ही बात हो रही है, राइट? अभी तक कोई कॉन्क्रीट बात नहीं हुई कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, राइट? अभी तक ड्राफ्ट नहीं हम देख सके। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये जो सारे आपने स्टेक होल्डर्स की बात की है, बात तो ये होनी चाहिए कि कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कोई ट्रांसपेरेंट डिबेट, कोई ग्रास रूट्स डिबेट, कोई डेटा, इसके थ्रू बात बनती है। फिर आप बताते हो कि इसका मकसद है कोई। अभी जिस तरह बात हुई है, देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक लिहाज से तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। व्हाई डू यू नीड टू लुक एट ऑल और नथिंग सॉल्यूशंस, राइट? कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी या नहीं, सॉल्यूशंस भी तो एक स्पेक्ट्रम पे होते हैं ना, कि भाई बेंच बना लो, इस तरह कर लो। सो फंडामेंटली हमें बात करनी चाहिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की। जो भी हम स्टेक होल्डर्स हैं, ये हमारी डिमांड होनी चाहिए गवर्नमेंट से, क्योंकि ये जो लोअर कोर्ट्स हैं आपके,
उन्हें क्यों साइडलाइन कर दिया जाता है, उनका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होगा तो कोई बैकलॉग पे असर पड़ेगा। एक दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि अगेन टॉकिंग अबाउट मोटिव्स, राइट, हमें सोचना चाहिए कि मजीद सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इस मुल्क के लिए अच्छी चीज है या नहीं। हमारी हिस्ट्री ने सेंट्रलाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम्स दिखाए हैं। देखें फेडरल और प्रोविंशियल इदारों का आप देखें, मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूं कि इवन अगर आप रिप्रेजेंटेशन दे दें तो क्या एक सेंट्रलाइज्ड कोर्ट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को सेफगार्ड करेगा। मैं आपको बताता हूं मैं क्यों स्केप्टिकल हूं, शायद लोग डिसएग्री करें। 18वीं तरमीम को जितना वाटर डाउन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है अपनी जजमेंट्स के थ्रू, वहां भी तो सारों की रिप्रेजेंटेशन है ना, क्यों ये ऐसा हुआ? ठीक, तो क्या मजीद सेंट्रलाइजेशन, हमें इस बात के बारे में सोचना चाहिए। क्या हमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या ये सही है? और आखिरी जो मैं चीज़ कहूँगा जो हमें सवाल पूछना चाहिए वो ये है कि हम, अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हमने देखा है एक हाइब्रिड निज़ाम है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस इन द जुडिशल स्फीयर रही है और एक रियलिटी रही है। अब जब एक लिहाज से डिफ्यूजन है, हाई कोर्ट्स भी कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, तो काफी सबको मैनेज करना ज्यादा मुश्किल है, राइट। जब आप एक जगह पे सेंट्रलाइज कर देते हैं, क्या एक लिहाज से इंडिपेंडेंस में इंटरफेरेंस एक लिहाज से ज्यादा आसान नहीं हो सकती है? हो सकते हैं लोगों के डिफरेंट व्यूज हों उस पर, मगर इट्स समथिंग आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट। सो आई थिंक मोटिव्स को क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जा रहे हैं। और मैं ये आखिरी चीज़, हमें स्पेशलाइजेशन बहुत पसंद है, हमें एक्सपर्ट्स बड़े पसंद हैं कि जी एक्सपर्ट्स लगा देंगे तो जी सब कुछ सही हो जाएगा, राइट। अगेन इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का रिप्लेसमेंट इतना आसान नहीं है, राइट। कभी कभी ये जो नए कोर्ट्स बना दो, नए और जजेस लगा दो, ये उसी तरह है कि आप सड़कें चौड़ी कर लो शायद ट्रैफिक सही हो जाए, राइट। आप ये नहीं सोचते कि जी ग्रास रूट लेवल पे मसला क्या है। तो इन चीज़ों को क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट से ट्रांसपेरेंसी डिमांड करना बहुत ज़रूरी है, इनके बिल्कुल ठीक मोटिव्स हो गया। क्वेश्चन करना। ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन, ग्रास रूट लेवल पे अवेयरनेस एंड डिस्कशन, आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड फॉर एनी सच बिग चेंजेस। क्विकली इस पैनल के थॉट्स लेते हैं। हसन, क्विकली, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड ये और ने, आपका वोट क्या है? अभी तक मैं कन्विंस नहीं हूँ, मुझे लगता है कि ये एक बस ने रिप्लेसमेंट फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नजर आ रहा है मुझे तो। ओके, वेरी क्विकली सजाद, आप क्या कहेंगे? अभी तक क्यों ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, और आपके ख्याल में ये या ने होना चाहिए कि नहीं? मेरा मेरा ओपिनियन फॉर द टाइम बिंग तो ये है कि करंट सर्कमस्टांसिस में तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हमारी ज़रूरत ही नहीं है। मतलब मैं नहीं कह रहा नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन जब हमें ज़रूरत हो। इस पे हसन नियाजी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। अब केस बैकलॉग की उन्होंने भी बात की और सेंट्रलाइजेशन की भी। तो केस बैकलॉग देखे तो सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी है वो शायद टोटल पेंडेंसी के 10% भी नहीं है। तो हम क्यों, और जब वहाँ से सिर्फ स्पेशलाइज केसेस जाएंगे तो बहुत थोड़े केसेस होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो बैकलॉग फिर भी कम नहीं होगा। और जो सेंट्रलाइज की बात कर रहे हैं ना, तो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 या 18 में जजमेंट दिए जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने, वो है मसला ये था कि कराची के कुछ हॉस्पिटल्स है तो उनने शायद सूबे ने ले लिया था या इस तरह कोई मसला था, तो फेडरेशन का मसला था, फेडरलिज्म का। उन्होंने जो एंट्रीज है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की जो एंट्रीज है उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो हम ब्रॉडली इंटरप्रेट करेंगे, नैरोली नहीं करेंगे। हालांकि 18 अमेंडमेंट के बाद ये चीज़ रिवर्स होनी चाहिए थी कि अब जो एंट्रीज है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की वो ब्रॉडली इंटरप्रेट नहीं होगी, वो बहुत स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट होंगी। उसमें हर चीज़ हम नहीं डालेंगे। वो हमारी सुप्रीम कोर्ट अब भी पोस्ट 18 अमेंडमेंट के एरा में भी वो इलाही कॉटन केस जो 1990s में डिसाइड हुआ था उसी को लेकर वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। राइट। तो वो सेंट्रलाइजेशन का इशू भी आएगा, केस बैकलॉग भी खत्म नहीं होगा और कोई पर्पस भी सर्व नहीं होगा। लिहाजा में तो मेरा नो है।
नो है अभी फिलहाल के लिए, ठीक हो गया। जी सारा मलकानी आपकी तरफ चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स फिल वक्त ये और ने? I would say no, no. I think कि already जो speakers की already जो राय है वो बस मैं reiterate करूँगी. I think that the current proposals are trying to evade the real fundamental problems, and I think that इस setup में currently अगर कोई ऐसा court बने भी तो वो issues resolve नहीं करेगा. हो सकता है कि वो हमें कुछ और ही ज़्यादा उलझाए सही, ठीक likely. हो गया। डॉक्टर मरियम, आपका ये या ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट? Very obviously no, because I think unless the change is looking persuasive and concrete, तो कोई जरूरत नहीं है. This is like saying कि पुराना और नया पाकिस्तान एक ही है लेकिन हमें कोई नई चीज चाहिए. You know, it's the equivalent of that, and that, as we know, is always a disaster. फाइनली अहमद हसन शाह साहब, आपका? Definitely the way it is being done, if it is being done, no. But as a matter of discussion, discourse, yes, there should be discussion, dialogue, persuasion. और देखिए, I frankly am not a believer in this basic structure and getting stuck to a structure of 500 years old. We have to learn from our experiences and we have to work for a better promise of for the next coming generation. यूनानिमस व्यू इस पैनल का यही हम्म। है कि हमें जरूरत नहीं है। और आई एम ओपनिंग द फ्लोर, और मैं शांतनु की तरफ पहले जाती हूँ, वो काफी देर से बेचारा वेट कर रहे हैं, और उसके सवाल से हम शुरू करते हैं। तो आप अपना सवाल दोबारा पूछ सकते हो, कोई और भी सवाल है साथ ऐड कर लें, बट प्लीज क्विकली, और ये भी आइडेंटिफाई कर दें अगर कोई स्पेसिफिक स्पीकर है जिनसे आप सवाल करना चाहते हैं तो। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। एक्चुअल में मैम, थैंक यू, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। और मेरे दो सवाल थे अहमद शाह सर से, अहमद हसन सर से, कि पहला तो ये है कि क्यों पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मिलिट्री रूल आपके कंट्री में लगा उसे क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर पाए? वो क्या रूल ऑफ लॉ नहीं था, या फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों फेल रही कि मिलिट्री रूल आपकी कंट्री में लग पाया? जैसे इंडिया में देखो, बहुत अच्छी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इतना स्ट्रांग है, अभी तक मिलिट्री रूल नहीं लग पाया है। सक्सेसफुली हम ट्रांसफर ऑफ पावर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। तो जुडिशरी हैज बीन प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाँ, एक बार इमरजेंसी टाइम में, जब इंदिरा जी का टाइम था 1975 में, कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ थोड़ा छेड़छाड़ की गई, काफी चीजें, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए, थोड़े इधर उधर से लॉ पास किए गए, तो कुछ चीज थी चीजें, बट ओवरकम जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, they try to prevent the authoritarian और dictatorship type of government, और ये military rule में convert नहीं हो पाया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी रोल जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में है, कि किस हद तक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एनफोर्स कर पा रही है। बस ये दो मेरे सवाल थे। जी अहमद साहब। जी वेरी ब्रीफली, पहला वाला तो इंतहाई सियासी सवाल है, और आउटकम में तो हम सब जो हैं हम गामजन हैं टुवर्ड्स अ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रेशन, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये भी फुली हो जाएगा। लेकिन जिस तरह हमारे चैलेंजेस रहे हैं, आपके यहाँ भी बहुत चैलेंजेस रहे हैं। मुझे तो बड़ी खुशी है कि आप ने ये ज्वाइन किया है। इसका मतलब है कि ऑडियंस जो है वो है, और वो हम पे भी इंटरेस्ट रखती है। तो आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। बट आपके अब देखिए एक्सपीरियंस में भी टर्मोइल जुडिशरी में कितना रहा है। तो ये सब ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं। आपके यहाँ भी एग्जेक्टिव और पॉलिटिकल पावर की एक्सरसाइज में बहुत बेतहाशा इशू रहे हैं। तो बट ये आपने सही कहा कि आपका एक्सपीरियंस जो है डेमोक्रेटिकली जरा साउंडर और उस पे श्योरर फुटिंग पे रहा है, और आउटकम्स आपकी भी डिजायरेबल जितनी थी या जितनी आपकी ख्वाहिश थी, आप वो हदफ शायद ना हासिल कर सके। लगा आप उनकी ख्वाहिशमंद हैं, गामजन हैं, हम भी हैं। तो सियासी सवाल का जवाब मैं नहीं देता। और दूसरा, इंडिविजुअल चॉइसेस की बात भी होती है। हमारे यहाँ जब मौके ऐसे आए, क्रॉस रोड आए, तो वो कहते हैं ना, दरअसल असल इम्तिहान जो है वो इंतखाब ही होता है।
तो हमारे उस वक्त उस मोड पे जो इंतखाब किए गए वो नहीं थे जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सो जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का रोल है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मगर मैं सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करने के हक में भी नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के फेजेस हैं, कई दफ़ा इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की और कई दफ़ा नाकाम रहे। जो अच्छी बात है मैं समझता हूँ ये है कि पाकिस्तान में इसकी तासुर के बरक्स हम लोग कम से कम अब इस मीडियम सोशल मीडियम से भी हम अपनी बात तो कह पाते हैं, उस पर असर हो नहीं हो लेकिन हम कुछ बात तो कह पाते हैं। तो ये डायलॉग जारी रहना चाहिए और वी आर ऑल होपिंग द रीजन दैट ऑल ऑफ अस हैड अपॉर्चुनिटी आई थिंक इन दिस फोरम, पर्टिकुलरली जो सारे स्पीकर्स थे सबको ये मौका मिला और उन्होंने अब चूज पाकिस्तान ही को किया, तो हम यही बैठे हैं, इसी से प्रॉमिस लेके बैठे हैं, इंशाल्लाह इसी को बनाएंगे। सही है, राइट सर। थैंक यू सो मच अहमद साहब। अब्दुल समी या सईद हसन, आपके कोई क्वेश्चंस हैं? Thank you, Dida. No, I don't have any question. Thank you. ओके अब्दुल समी आपके? अच्छा ओके, चलें जी। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर योर टाइम ऑन अ सैटरडे इवनिंग फॉर अ टॉपिक दैट इज नॉट बीइंग डिस्कस। मुझे बल्कि डॉक्टर मरियम कह भी रही थी कि थोड़ा आउटडेटेड टॉपिक हो गया है क्योंकि अब इसकी बात थोड़ी मतलब और डायरेक्शन में चली गई है, हम जजेस की एज बढ़ाने के उसमें लग गए हैं। बट आई सेड टू हर कि नहीं लेट्स स्टिल डू इट बिकॉज हर कुछ अरसे बाद ये इशू आता है और उसके बाद फिर बैठ जाता है, तो कभी इसके ऊपर कोई कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो नहीं पाती है। सो मैं पर्सनली भी अंडरस्टैंड करना चाह रही थी और मैं चाह रही थी इसी तरह से जो हमारे यंग लॉयर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादातर हमारी ऑडियंस है, there should be an opportunity for them to hear it from the people who are working on these issues or who understand these issues in the ways that probably all of you do. But I completely agree with all of you that this has to be a conversation that continues and that we keep on having so that it's not something that one fine day we wake up and we realize कि अच्छा बिल तो पास हो भी गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आ गया और अब नाउ वी आर हैविंग टू डील विद इट। तो अक्सर ऐसे ही होता है। सो आई थिंक इतना हम इंटरेस्ट जनरेट कर लें इस कॉन्वर्सेशन में कि ये ज़रा ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आए तो शायद हमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी भी फिर मिल सके। On that note, I am personally grateful to Sajad because वो Saturday holiday वाले दिन काम नहीं करते फिर भी उन्होंने टाइम निकाला। So thank you so much. जलीला unfortunately हमें ज्वाइन नहीं कर सकी, उन्हें इंटरनेट के इश्यूज थे, वो होती तो हमें बलूचिस्तान का भी थोड़ा पर्सपेक्टिव मिल जाता। But hopefully I'm going to try and speak to her in person and add that to the document that we make based on this conversation. On that note, thank you so much. And I'll see you in some other conversation that we have. Thank you so much to all. Thank you sir. Thank you. आपने बहुत अच्छे से बताया और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। Thank you so much. Thank you so much. Grateful for everyone's participation. Thank you. Thank you, Nida. Again, I'll sign off. Thank you so much, sir.